हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एंड हम तीन जब मिलते हैं तो एक वाइब भी होती है कि हम लोग बहुत मस्ती करेंगे और बहुत मजा करेंगे. बट समहाउ रिसेंटली द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन आवर कंट्री, हम सैडेस्ट पॉसिबल चीजों पे इकट्ठा हो रहे हैं. But I think these things are important to talk about. Sajeer Sheikh, Maryam Shafqat, they need no introduction. So maybe let's just jump straight into it. um, मैंने अभी मैसेज में लिखा था कि वी विल बी डिस्कसिंग द रीसेंट राइज इन केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. उस पर किसी ने मुझे अच्छा व्हाट्सएप पे जवाब दिया कि रीसेंट क्या है इसमें, हम्म। राइज भी क्या है. आई मीन अभी हम एक न्यूज है, वो जो न्यूज आ गई है तो हम सबको एक हैशटैग बना दिया हमने. बट ये रिसेंट तो नहीं है, ये तो राइज तो नहीं है. ऐसी ही जिंदगी होती है. सो मरियम, सजीर, whoever wants to give the opening statements. Okay, I'll start. I just think that every time we have a conversation like this, मुझे इतना गुस्सा आया हुआ होता है because there are so many things happening, and I think we were talking about this recently as well. Like just the numbness you feel with something new happening every day, right? I was discussing this with my parents as well when this case came forward. कि अभी तक नूर का कुछ नहीं हुआ हुआ. Like Zaheer Jaffer is doing his theatrics and whatnot. Like there's nothing. Like it's been a year and a half. Nothing has happened, and now we have another case. And the conversation that I'm seeing, and I hope this is a minority जो इस तरह की बातें कर रही है, but I'm pretty sure it's not. कि नूर के केस में why did she go to his house? इसके केस में why did she marry a psycho? आप बता दें हम क्या what is it that women should do to ensure their safety? Should we not get married? उससे भी आपको मसला है. बच्चे पैदा नहीं करने, हम तो हैं ही बच्चे पैदा करने वाली मशीन ना. अगर हम शादी से इनकार कर दें तो फिर तो मतलब क्या ही हमारी वर्थ ही क्या रह जाएगी. So I'm really pissed off at the kind of conversations that are happening, and I really do want to put certain people on blast here. अगर आप, I don't care enough to give them clout because whatever, but the kind of the incel conversation that I happen to tap into, something along the lines of somebody said something like serves that gold digger right or something, and I was like, Oh, wow. how do you see news where a woman has been murdered and in the way that she has been murdered, and that is your takeaway from the entire thing? Like आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट सजीर, एंड आई नो जो लोग टीपी रेगुलर सुनते हैं वो बोलेंगे कि तुम्हें हर चीज में पीटीआई नजर आती है. बट मैं ट्विटर में अट्यून्ड हूँ. ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं सारी, ये पीटीआई की तरफ से ही आ रही हैं. एंड ये फ्रिंज थ्योरी नहीं है. यस, शुरू में फ्रिंज अकाउंट्स ने बोलना शुरू किया था कि अयाज आमिर क्योंकि पीटीआई के साथ है, तो उसको फ्रेम करने के लिए और उसके बेटे को फ्रेम करने के लिए और पीटीआई के अगेंस्ट ये सब किया गया है. नाउ फवाद चौधरी सेड समथिंग सिमिलर. सो ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान वजूहात ढूंढ ही लेता है टू अंडरमाइन any case. Sorry, Sajeer, I interjected, but I felt that was important to clarify. Ji, Sajeer. I think right now, Shehzad, there is very clearly, and not right now, again, like you said, कि decent तो नहीं है ये, but there is very clearly a war being waged against women, trans people, anybody that's not a cisgendered Sunni man. And I think that, मतलब हम, like, what are we waiting for? Like, I want to understand what more has to happen for, like, is it, I'm actually genuinely baffled. Like, is it that कि हम लोग इतने desensitized हो गए हैं कि ये कि a Noor gets killed, we hold vigils, we move on. A Sara gets killed, we hold vigils, we move on. Trans murders happen, we maybe go to a protest, we move on. तो मतलब अब क्या, like, रह क्या गया है? If there is very clearly a war being waged against the oppressed factions of society, what is the next step? Because I am genuinely tired of talking about it. Like, what is the next step? Talking about it से तो कुछ नहीं हो रहा ना. मतलब हम लोग मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, ट्रांसो को मारा जा रहा है, आप अवधी कम्युनिटी को ले लो, उसमें से लोग मर रहे हैं, ग्रेव डेसिक, लाइक 50,000 चीजें हो रही हैं with everybody that is not a majority, and we know who the majority is, right? So what is next? I also want to understand, because I am also tired of just talking about it.
मैं Mariam, do you want to say something, because then Mariam Jamali is या also joined us, but Mariam बोल दो पहले. आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट ब्रीफली कि मेरा तो मेन क्वेश्चन जो है वो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जस्ट हाउ मच डू यू गाइज हेट वुमेन. It's I think pretty evident how much they hate. There is no end to the violence and the hatred, because it's not just a murder happening every time. It's the conversations that take place. मतलब अभी जो जब मुझे पता चला था तो इट वॉज आई गेस 2-3 घंटे गुजर चुके हुए थे इस खबर को आउट हुए हुए, और उसके नीचे सबसे पहले गरीदा फारूकी ने शायद ट्वीट्स में आउट किया था सबसे पहले ये, और उसके नीचे ही ट्वीट्स में गरीदा फारूकी को भी रणगस्ती स्लट ये वो इस तरह के उसके उस ट्वीट के नीचे लिटरली जिसमें वो बता रही है कि उसने डंबल पकड़ के उसको मार दिया है, और वो तस्वीरें इतनी मतलब होलनाक है कि आप भी शेयर ना करें और मैं भी नहीं देखना चाहती हूँ तस्वीरें. उसके नीचे ही इन्होंने किसी ने सजेस्ट कर दिया था कि ये चीटिंग कर रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर. ठीक है. 3 महीने के अंदर अंदर जिस बंदी ने गाड़ी खरीद के दी हो अपने शोहर को, जिसकी वो शुगर मामा बनी है, वो चीटिंग उसके ऊपर कैसे कर सकती है, मुझे तो ये नहीं पता. दूसरा ये कि बार बार इस तरह की नैरेटिव करना कि अ डेड डॉटर इज बेटर देन अ डिवोर्स. भाई यहाँ तो डिवोर्स और की तो बात दूर की है, आप जिंदा तो रहने दो किसी किसी हालत में, डिवोर्स में या वैसे इज्जत के साथ जिंदा तो रहने दो. अभी मेरी कुछ एक दूसरे ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चल रही थी ये ट्रांस इशू के ऊपर. तो उसमें भी जो मतलब मैंने कहा कि यार आई डोंट नो इफ आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग इट, लेकिन एक्चुअल जो मुझे समझ आई ना वो ये समझ आई है कि ट्रांस औरतों को खास तौर पे ये औरत ही औरत अगर समझ जाते हैं तो फिर जो इनकी जो हेटरेड का और जो वो है ना वायलेंस का लेवल वो औरतों वाले ही कैटेगरी के अंदर आता है. यानी कि आप डोमेस्टिक वायलेंस बिल उठा के देख ले और आप ट्रांस बिल भी की के ऊपर भी डिस्कशन देख ले, उन दोनों डिस्कशन का ये है कि हमने किसी भी तरह से और औरतों को सिर्फ हो या ट्रांस हो हमने उनको जीने नहीं देना, उनको हमने लीगल वो वाला कवर नहीं हमने प्रोवाइड करना ना, क्योंकि अगर हमने वो कर दिया ना तो फिर जो है ना वो हमारे ऊपर मसला हमें जो है ना वो औरतों को सब्जुगेट करने में मतलब पड़ जाएगा. और ये बात जो है वो मतलब मैं काफी दफा पहले भी कह चुकी हूँ, ये हेटरेड और ये कत्लो गारत और ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि गला घोंटना ये सिस्टमेटिक है. ये इन मर्दों को अच्छी तरह से पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनको ये भी अच्छी तरह से पता है कि ये क्यों कर रहे हैं, इनको ये भी पता है कि इसके अंदर से बेनिफिट्स इनको क्या मिल रहे हैं. इसके अंदर जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती वो इस चीज से समझ नहीं आती कि इसमें जब औरतें इसके साथ मिलकर इस तरह की कॉन्वर्सेशन के अंदर हिस्सा डालती हैं ना और उस वायलेंस को परपेचुएट करती हैं, उनकी नहीं मुझे समझ आती. आपका तो मुझे पता चल रहा है कि आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर से, लेकिन मुझे उन खवातीन की नहीं समझ आती कि उन लोगों को उसके इंटर अंदर से आज तक क्या मिल रहा है. और तीसरी इंटर्न एक जी. एक चीज मैं को पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि शर्मो हया. ये आपने बस कुरान आपका इस्लाम और कुरान और उसकी जो अहकामात है वो सिर्फ औरत के पर्दे तक ही रह गई हैं. आपकी अपनी शर्म आपकी अपनी इंसानियत, ठीक है, जो कि कुरान में वह कई दफा इस कुरान में हदीसों में इस्लाम में जिक्र है, इंसानियत और शर्मो हया ह्यूमैनिटी, वो किधर है आपकी? उसको आप कब फॉलो करेंगे? आपने दीन भी अपना ही बना लिया हुआ है अपने लिए ही, जहां जहां तक आपको जरूरत है. अपनी अपनी शर्म हया से फोकस हटाने के लिए आप औरत के पर्दे के ऊपर, आप औरत के करेक्टर के ऊपर, आप औरत कत्ल भी हो जाए उसके ऊपर भी आप जो है वो बस उसके ऊपर ही कन्वर्सेशन घुमाई जाते हैं. पाकिस्तानी मर्द में यहाँ से ये अपनी बात यहाँ पे खत्म करूंगी. दुनिया के सबसे बेशरम और सबसे घटिया इंसानों में से जो है ना वो दुनिया में वो है इस वक्त. एंड आई एम नॉट इवन आई वुड नॉट बी इवन बी एग्जैजरेटिंग दिस. It's या Maryam Jamali has joined her. I'd love to get her take. वो आज ही बलूचिस्तान से आई हैं. She's doing phenomenal work बलूचिस्तान Relief Fund मदद बलूचिस्तान में. Sorry Maryam, we had to discuss the recent case. So when you had joined, we're just discussing that. But we'd love to get updates from you कि flood relief में क्या हो रहा है.
क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। ऑलरेडी सौ आज दावर की ट्वीट थी कि आज के अखबारों में कहीं पे भी फ्रंट पेज न्यूज में, शायद किसी एक अखबार में फ्लड था, बाकी हर जगह से सीम्स लाइक द नेशन हैज मूव्ड ऑन। क्या हालात हैं बलूचिस्तान के एंड व्हाट इज हैपनिंग विद फ्लड रिलीफ? Honestly, it's like worse than before to a certain extent because now you have disease coming on, you have malaria outbreaks, you have cholera outbreaks, and लोगों का मतलब मेरे ख्याल में उनको जो इनिशियल रिएक्शनरी जो होता है ना कि पोस्ट करो, हैशटैग लगाओ, रिट्वीट करो सो दैट वी डोंट सीम इनसेंसिटिव। हम लोग बेशक जो है ना पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में रहते हैं और इन चीजों से बहुत दूर है, लेकिन we're gonna raise our voice. That was for the first 2-3 weeks. Ab nobody cares. People have given their 1,000, 2,000 rupees ke donation, and now it genuinely does not matter to them that a marginalized population, when without food, without shelter, without access to clean drinking water, without access to clean water to wash themselves even. So it's pretty much the same as Pakistanis reacting to everything else that happens in Balochistan. Like missing person, you react, you move on. Anything else, any political instability, you react, you move on. CPEC हो रहा है, there is imperialism literally happening here. You talk about it for a day and then you move on. So it's not surprising to me at least, but it is disappointing. क्या कर सकते हैं हम दूर दराज बैठे हुए? what can we do? People who are listening, क्या what do you feel we should be doing? I think people should have more empathy and more compassion at these times. They should sit down and reflect on what is happening around them because it is very, very easy to drown it out. Ignorance is bliss. I can understand that, but uh, it that whole social media activism thing, the one that thrives on infographics, if you're participating in that and then considering yourself a social activist, a champion of human rights, and then you do not care about flood victims at all after you have completed your quota of tweets, then um, you should, I don't know, do something. You should improve on yourself as a human being. Um, Mariam, Sajeer, do you guys have any questions for Mariam? I don't have. Okay, Sajeer, you go ahead. I had a question. I was going through, and this is again for Mariam. I was going through somebody was talking about flood, like compiling all the donations and whatnot, and somebody was talking about how people are now confused about who to donate to because there is just suddenly like an influx of so many different places that one can donate to. So, like, what do you suggest, like, for people who actually don't know कि अच्छा मुझे कहाँ कितना donate करना है, क्या donate करना है? A and B, there is a separate conversation which I find very problematic कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं वो चीजें बेच के क्या कहते हैं कुछ और like they're doing like they're sort of exchanging the goods for something else, which I feel is fair, good for them, they know what to do with that, but that is also a conversation that I feel is taking away from the donations and the collection, because even in the comments here somebody's like हमें क्या पता कि like जो actual donations हैं वो जा रही हैं flood victims को, right? So to sort of put these conversations to rest, like what would you say? So as for like the whole flood victims क्यों बेच रहे हैं, mostly जो सामान ये लोग बेच रहे होते हैं, it's not, nobody is selling it because they want to. They're not getting millions off of selling a bag of rice on the market. They have basic necessities right now क्योंकि लोगों ने अपने घर छोड़े हैं, उन्होंने उनके पास जितनी भी जायदाद थी, जो कुछ भी था, जो सारी जिंदगी उन्होंने कमाई की है, लोग छोड़ के चले गए हैं लिटरली। कुछ जगहों पे जैसे सोबतपुर में जब पानी आ रहा था तो लोग भाग रहे थे, इतनी तेजी से पानी कैनाल में आ रहा था। और मतलब एक एक औरत लिटरली पानी का सुन के, पानी को देख के उसे हार्ट अटैक हो गया। तो इट फॉर देम
maybe they don't need the bag of rice. Maybe they need some medicine. Maybe they need to take someone to a doctor. And in most of these relief camps, there aren't any doctors. Even in our own, like बहुत ज्यादा मिन्नतें कर करके एक डॉक्टर मिला है. बाकी जो है ना वहाँ पे डिस्पेंसर्स हैं. डिस्पेंसर्स कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं कर सकते डील. तो पीपल नीड मनी टू send like their family members to the city. As for the like where to donate, I think it's best to be informed. It's best to call the people you're donating to, talk to them, listen to them. उनको एक बार खुद ही वेट कर ले. थोड़ी सी इसमें एफर्ट लगती है, लेकिन I think that's the best way to do this because again, social media activism has this thing that the floods have been used to get clout for these. It's a very weird thing here in Balochistan where it's like the issues are so real that at some point people are like, let's talk about it to get clout. So there's that. It's a pretty weird phenomena that is Balochistan centric, and most people on the outside don't understand it. But yeah, if you want to donate, call people up, talk to them, see if they seem reliable enough. Check their organization out, check their profiles out. वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे लोग हैं in the first place. क्योंकि I'm guessing most people are wondering कि कौन सी grassroots organization को दे. क्योंकि बड़े organization का तो मतलब अखुवत वगैरह का तो people hear about them and they're like yes reliable, we can donate there. लेकिन grassroots में it's a bit of a thing of you 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 have to trust them, you have to build that trust, you have to give it time maybe. So, Mariam, you're also on the ground, you're also on social media. What do you think we're getting wrong on the social media conversation front? क्या है जो ग्राउंड रियलिटी है जिसकी कोई बात कर ही नहीं रहा, या क्या है जिस पे ज्यादा अटेंशन दी जा रही है, एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट उसको अटेंशन नहीं देनी चाहिए? मेरे ख्याल में एक तो जो है ना, जो लोग दूसरे लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करके उनकी डिग्निटीज उनसे छीन कर जो फोटोज ले रहे हैं सिर्फ डोनेशन जमा करने के लिए, एक तो वो खत्म कर लें खुदा के लिए. आप क्यों जो है ना किसी की इज्जत को इस तरह सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ एक डोनेशन के लिए. मतलब दैट आई थिंक इज वेरी इनह्यूमन एंड यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. As for the other thing, I think that people need to volunteer, help fundraise, because we're falling short on volunteers. I've been begging people left and right, like, help me fundraise, please help me fundraise. We need money right now, because it's slowly going into the rebuilding phase, the rehabilitation phase, where people are recovering, but they don't have any shelter. And in places like Dera Bukti, वहाँ पे ठंड होती जा रही है. So people don't have shelter. You can't live in a tent in the winter. That's just it's impossible to do. So that, like, help us fundraise, help us do things. Like Collabs did an amazing thing where they had a drum circle and people came by and they donated. So things like that, that's very helpful. It helps us. It keeps the conversation in the mainstream as well. So मरियम गुराया, आप कुछ कह रही थी बिफोर सजीर टुक ओवर. मैं क्वेश्चन ही पूछ रही थी एक, आई एम क्यूरियस के आई इवन हियर इन जर्मनी आई सॉ अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट फ्रॉम फॉर एग्जांपल द इंटरनेशनल rescue committee in German, that they are collecting donations, and I'm just to give you an example. So I'm not sure if you इस तरह के लिए बड़ी बड़ी एनजीओज और खासतौर पे जो डिजास्टर रिलेटेड एनजीओज हैं उनका कोई रोल प्ले कर रही हैं वहां पे, कुछ नजर आ रही हैं करती हुई, कि बस जिस तरह ये बस इनकी वो क्या से कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही, और वो सब कुछ ये सोशल मीडिया और वो वहीं पे ही है सब कुछ इनका फंसा हुआ. So we recently had an interaction with one of these big organizations. उनको जो है ना मेरे ख्याल में World Bank वाले जो है ना, they were supporting them. It was an INGO, I believe, and they talked to us. We had someone all the way in Las Vegas go to them and have a meeting.
And the only thing we offered was that हम आपको डेटा दे देते हैं लोगों के ऊपर कि जो है ना, जो हमने लिस्ट बनाई हुई है लोगों की जो जरूरतमंद है, और उन एरियाज में आपको गाइड कर लेंगे. So the guy dragged us for like a solid week, and in the end, just like said, आपको हम लोग कुछ नहीं दे रहे. We're not gonna work with you. हमारे जो district coordinators हैं, they're gonna handle distribution. वो सिर्फ IDPs को. अच्छा. And I was like, yeah, भाई मैं कौन सा अपनी अम्मी अब्बू के लिए जो है ना लेके जा रही हूँ mosquito nets, obviously IDPs के ही है. But they have a very different way of working um, that basically functions as in get donations, throw it at the masses. From सामान the फेंको. helicopter. हाँ, फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, या जो है ना आप अपना एक पैनाफ्लेक्स लगा के वहां पे जो है ना लोगों को दे रहे हो, 4 फोटोज भी अच्छा. खींचो कि हम लोगों को दे रहे हैं. एंड या दे एंड इन दैट, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, लोग इनके ऊपर चढ़ जाते हैं. मतलब लिटरली 200-300 लोग जो है ना जमा हो जाएंगे, किसके पास टोकन है, जाहिर है. किसके पास नहीं है, कौन सी लिस्ट है, नहीं है. लाइक पीपल आर गोना टेक अ लॉट ऑफ दैट. एंड a lot of this stuff also goes into MPAs and MNAs के बैठक जहाँ पे ये सामान पड़ा होता है, and mostly it goes from that to the market, not like ordinary people. I'm going to say I'm a witness of this. I'm not going to name the person, but it was someone in my village जिसने 2 ट्रक ने बैठक में जो है ना रिलीफ के सामान के रखवाए और फिर बेचे. And it wasn't even like कोई far off someone और जो है ना उसके पास पैसे नहीं थे. No, the guy was rich enough, was upper middle class, and he just hoarded and sold that. So I mean, doesn't come to me as a surprise that these NGOs are just on conferences, on papers, लंबी लंबी बातें करनी, और वो भी उस लैंग्वेज में करनी जिसमें सिर्फ इनको ही समझ आ रही है, किसी तीसरे चौथे बंदे को समझ नहीं आ रही. हर दूसरे साल जो है ना एक नई जो है ना वो फ्रेजेस की लिस्ट निकल जाती है. यू नो, प्लीज डोंट. अच्छा, आजकल एक चल रहा है, प्लीज डोंट स्टे इन सेक्टोरल साइलोज, प्लीज शेयर योर इंफॉर्मेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड हैव extended coordination and efforts and community building and all of this blah blah bullshit. But in actuality, I mean, doesn't really surprise me, but that's what they are doing. So just to point out कि if someone was wondering कि मैं IRC को पैसे दे देता हूँ या दे देती हूँ, या UNDP को या USAID को या जो जो भी दोषे वाले ब्ला ब्ला ब्ला, प्रॉब्लली ना ही दें उनको. जो लोग जनरली वहां पे काम कर रहे हैं इन पर्सन, उन्हीं के हाथों में पैसा दें. सैयद रजा चैट में पूछ रहे हैं, इज इट ट्रू in Balochistan people stay away from taking donation because of these pictures? For some people, yeah. For a lot of people, yes. मतलब जो हमारे पास एक कॉमन टर्म यूज होता है ना, सफेद पोश. कुछ लोग सफेद पोश, आप उनको ना भी समझे इन इकोनॉमिक टर्म्स, बट दे nobody wants to ask. कोई अपना हाथ फैलाना नहीं चाहता. It takes a lot of takes you to sacrifice your dignity to do that. वो कुछ लोग जो है ना नहीं करते, और कुछ लोग कर भी नहीं सकते. तब हम लोग जो है ना कुछ विडोज थी जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि इन एरियाज में मोस्टली लाइक इट्स ऑल मेन. फर्स्ट यूर सैक्रिफाइसिंग योर सेफ्टी, यू कांट डू दैट. दूसरा जो है ना कल्चरली भी, इवन फ्लड में भी आपके वो कल्चरल नॉर्म्स है कि यू कांट गो आउट लाइक दैट. तो एक ये चीज भी है. और जो है ना एक तो इतने जो है ना डिजास्टर्स और इतने रिलीफ के बाद भी लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि फोटो देना जरूरी होगा. तो जिन लोगों को मतलब बहुत बार ये हुआ है कि आपने उनको सामान दिया तो वो पूछते हैं कि फोटो तो नहीं लेनी है आपने, अगर फोटो लेनी है तो ले ले, बिकॉज दे थिंक दैट इफ यू टेक द फोटो दे विल गेट मोर सामान. What a joke. Yeah. I mean, I guess I'm if some people curious. are willingly doing it, ठीक है. If it helps showing people कि यार वाकई कितनी situation बुरी है, I guess good cause. I am curious about one more thing. Um, what are the lessons that you have learned now that you would think कि अगर पहले पता होते तो
relief efforts would have been much more fruitful? Probably keeping more track of things and not thinking that we can rely on the government or Hmm. bigger organizations. And um, I think we would have made our way through bureaucracy far better क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए आपको एनओसी चाहिए, आपको जो है ना बीसीआरए से रजिस्टर होना है, फिर आपको जो है ना पीडीएमए से रजिस्टर होना है, फिर आपने पीडीएमए से एनओसी लेनी है. And there is stuff that happens in PDMA that one should not speak of, honestly. There's less of Wow. a department and more of a nightclub at night. तो उन चीजों में जो है ना, मतलब मुझे लगा था कि मैं चादर पहन के चली जाऊंगी तो जो है ना सब अपनी बेटी समझ के ही कुछ ना कुछ काम कर देंगे, और मेरे पास रेफरेंसेस भी थे. मतलब माय अंकल्स आर इन ब्यूरोक्रेट्स एंड दे आर प्रीटी डिसेंट हाई अप ऑफिशियल्स, तो उनके नाम लेके फट के कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट इट वाज वेरी अनसेफ. आई फेल्ट वेरी अनसेफ. बहुत धक्के खाए, जो है ना 6-6 घंटे ऑफिस में बैठना पड़ा, और एंड में जो है ना Wow. आपको पता चलता है कि नहीं, साहब तो नहीं आए. I somehow I can attest के साहब जो हैं वो आए बैठे होते हैं, वो बस देखना नहीं चाह रहे हम्म. होते, मिलना नहीं चाह हम्म. रहे होते. Because I have worked as a journalist, so I know sometimes, most of the time. I am लोग just like, आपकी wow. चैट में मरियम, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम और डिटेल्स पूछ रहे हैं कि इफ दे वांट गिव मनी कैसे. मैं आपके ट्विटर हैंडल वगैरह भी लिख देता हूँ. MADAT कम्युनिटी मदद बलोचिस्तान. बट मरियम, डू वांट टू प्लग एंड से किस तरह लोग डोनेट कर सकते हैं? You can donate through Easy Paisa, you can donate through Jazzcash, HBL, like bank account. मतलब मेरे और मेरी अम्मी के पर्सनल अकाउंट्स में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, because our official account is in the works. स्टेट बैंक्स के बहुत ज्यादा रेगुलेशन है जिसकी वजह से टाइम लगता है. So inshallah we'll get that account, but until then you can send us a message on Twitter or on Instagram and we'll reply to you and let you know of the details. This actually reminds me, I know this genuine किस्सा from हैदराबाद के. एक दफा वहां पे somewhere around 2005 सैलाब आया हुआ था, तो एक पॉलिटिशियन थे, उस एरिया में से पानी निकालना था. तो वो जो पॉलिटिशियन साहब थे वो पानी वहां से निकाला जाता था, और वो जो पॉलिटिशियन थे वो वापस डाल देते थे उस जगह पे पानी, मशीनें डाल के. तो फिर उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या सीन है, आपको क्या प्रॉब्लम है. तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप तो एक दिन का रिलीफ काम कर रहे हैं, तो असल में तो पॉलिटिक्स हमने यहाँ पे लड़नी होती है, हमने इलेक्शन लड़ने होते हैं, हमने लोगों के घरों में जा जाके उनसे वोट लेने होते हैं. तो आप हमें करने दें, जब हमें मुनासिब लगेगा, तो हमें हमें लोगों को दिखा के करने दें कि हमने ये किया है. आप हमारे बिहाफ पे इस तरह के काम ना ही करें तो बेहतर है. तो वही वही एटीट्यूड है इन लोगों का. नथिंग हैज चेंज्ड इन हाउ मेनी, लाइक 17 years. हाँ. इट्स लाइक एट दिस पॉइंट वाकई वो, मतलब जिस तरह बार बार वो सजीर भी कह रही ना, इट्स एग्जॉस्टिंग, आउट ऑफ वर्ड्स. बार बार वही चीजें रिपीट. इट्स द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वी आर एक्चुअली रिग्रेसिंग. आई एम प्रिटी श्योर वी आर रिग्रेसिंग. वी हैव नॉट मूव्ड इस एन इंच बार फॉरवर्ड. इस बार तो जो है ना, जो हमारे जमाली सरदार थे, उनके लास्ट जमाली सरदार, आई डोंट थिंक देयर सरदार एट द मोमेंट. वो जो है ना, जब सैलाब आया, पानी खड़ा हो गया, और जो है ना आखिर में किसी ने रास्ता बहाल किया, तो वो आए हमारे गाँव, और जो है ना मतलब आर्मी का एक ट्रक भी ले आए, और जो है ना मतलब फुल फोटो शूट हो रही थी, लाइक प्रोफेशनल कैमराज, और फोटोज खींचे जा रहे हैं, और साहब जो है ना सामान दे रहे हैं लोगों को. और इवन जो है ना उसने मिनरल वाटर डिमांड की थी, और वो मिनरल वाटर जो छोटे बच्चों के लिए कुछ कैंस भेजे थे कि जो है ना उन दूध पीते बच्चों को आप जब दूध बना के दें तो मिनरल वाटर में बना के दें. उसमें से एक कैन उठाना पड़ा इन साहब को देने के लिए क्योंकि उनकी डिमांड थी. अच्छा, तो कि मिनरल वाटर पॉलिटिक्स, मुझे चाहिए. रीजनल पॉलिटिक्स.
हाँ, मिनरल वाटर मुझे चाहिए, क्यों आप लोग जो है ना बेशक खराब पानी पीते रहो, भूखा मर जाओ, लेकिन मुझे तो मिनरल वाटर ही कबूल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ, आती कि इतने एपथेटिक और इतने वायलेंट, मतलब हम लोग कहाँ से करते क्या है But this सारी is जिंदगी। so of like the mindset that we have. Obviously, जो एक तबका है जो आपका घर बैठ के अपनी privilege enjoy कर रहा है, एसी वाले कमरे में बैठ के बोल रहा है, oh these poor flood victims, please donate, and like that's the extent of it. हम्म। It's there's also a conversation where they're like कि ये लोग कैसे जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं एड पे, बट आप उनको जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो, आप उनके ऊपर एड फेंक बिल्कुल। रहे हो, आप उनके सामने मिनरल उनके पीने वाले पानी से हाथ धो रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि आप जितना और गरीब लगोगे, जितना और आप मिजरेबल लगोगे, उतनी हमारी बेहतर तस्वीरें आएंगी ताकि आपको और एड मिलेगा. You don't have the idea of what your treatment towards these people needs to be. You see them as lesser to begin with. So why do you expect कि like ये जो आपकी कॉन्वर्जेशन अराउंड जानवरों वाली ट्रीटमेंट, आप पहले खुद तो देखो कि आप किस तरह ट्रीट कर रहे हो उनको. When you don't consider them, when you see them as a project as opposed to people who are living through this very real disaster that has impacted so many lives, you take away from their humanness. So why start that conversation in the first place when you are so complicit to begin with? And that's what pisses me off about this entire thing. Like, oh, आपने करना कुछ नहीं है, आपके पास एक फॉलोइंग है, आपने एक वीडियो बनानी है कि ओ ये तो ओ ये गरीब लोग बेचारे लाइक कितने सैड हो रहे हैं और हमें इनको हेल्प करनी. But that's the extent of what you're willing to do while you sit in your drawing room talking about how you can't trust these victims if they come to the city and they will do this and that and whatnot. You are stripping them away of that sense of being human, and then you want to have that same conversation about how they're not acting human enough. Like, fuck off. Sorry. the या worst one of the worst places in hell is reserved for people who are politicizing aid at this point. जिसको जिसको ट्रस्ट करते हैं डोनेट करें कम से कम. I was I was hoping Anam could also join us, but Anam is having internet issues. तो मरियम हम आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं specifically to do with women. Generally एक flood discussion हो रहा है, flood affectees discussion हो रहा है, but some people like Anam and Bushra and you are talking about that there's certain women specific concerns that nobody's addressing. I'd love for you to talk about that as well. Yeah, so with floods, I think people have forgotten the part where like women bleed every month, and बीच में एक अजीब सी डिस्कशन शुरू हो गई थी कि आप जो है ना इन लोगों को पैड्स वॉलंटियर्स दैट आई हैड रीच्ड आउट टू इन अदर एरियाज, मैं उनको बता रही थी कि भाई आपको जो है ना राशन वगैरह के साथ जो है ना ये भी भेज देंगे, या आप किसी दाई को दे दें कि या किसी जो है ना फीमेल वॉलंटियर को दे दें, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी. तो वो कहते हैं हमारे इलाके में तो इस्तेमाल ही नहीं. भाई पानी खड़ा हुआ है चारों तरफ. You don't want these women to use cloth washed in contaminated water and then used as a pad, so that they put themselves at a risk of a UTI, they put themselves at a risk of vaginal infections without access to even broad spectrum antibiotics. So, yeah, I didn't like that decolonize everything conversation that people were bringing up with all of this. गांव की औरतों को भी पैड इस्तेमाल करना आता है. जिस तरह आप और मैं सहूलत को जो है ना पसंद करते हैं, उस तरह वो भी सहूलत को पसंद करते हैं. वो अपनी मर्जी से जो है ना कपड़ा इस्तेमाल करके उसे धो नहीं रहे होते. मतलब I'll take the example of my mother. She uses normal pads, but also uses cloth whenever, whatever preference hers is. She'll use pads in the first 2 3 days. On the last day, she'll use cloth because it is better, or she's comfortable with that. But she's able to do that क्योंकि उनको access है. So yeah, especially men were trying to take over this conversation. मतलब आप जिसको पता भी नहीं है कि यूट्रस कहाँ होता है, आप जो Yeah. है ना बायोलॉजी भी नहीं जानते हो, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि औरतों को पीरियड्स कब आते हैं, कितने टाइम आते हैं. आप भी हमें समझा रहे हो कि हम क्यों ये गांव की औरतों को पैड दे रहे हैं. मेरा गांव है, मैं रहती हूँ वहां पे.
मैंने भी कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है, मेरी दादी भी करती थी, जो है ना, मेरे इलाके में सब करते थे। लेकिन अगर मेरे अपने जो गांव के लोग हैं वो मुझे फोन करके बता रही हैं, औरतें मुझे बता रही हैं कि अगर कुछ हो तो जो है ना, पैड्स कहीं से कर लो, या अंडरवेयर कहीं से कर लो, या इवन रिमूविंग क्रीम कहीं से कर लो, बिकॉज हर किसी के हाइजीन रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, उनकी मर्जी, हम्म लिटरली उनकी मर्जी, वो क्या जो है ना हम्म यूज करे और क्या जो है ना आपसे मांगे। तो Yeah. अगेन वही बात है ना कि हम एक तो लाइक द वे पीपल थिंक इज हम खाना भेज रहे हैं, हम कपड़े भेज रहे हैं, अब हम पैड्स भी भेजें, हम दवाइयां भेजें। भाई क्या आपकी आपकी जरूरतें और उनकी जरूरतें डिफर करती हैं, स्पेशली इन द टाइम ऑफ लाइक अ मैसिव डिजास्टर सच एज दिस? Do you think they will stop bleeding? Do you think that infections will stop happening? Do you think all of these situations will magically disappear because there's a natural disaster that's happening and women's bodies collectively decide, you know what, let's put our periods on hold so that we can get donations in the form of food and medicine only? Like this conversation being co-opted by men specifically, and I was so angry when this was happening, क्योंकि वही बात है ना, लाइक आपने जब पिछले 10 साल से जो पीरियड्स की कॉन्वर्जेशन हो रही है उसमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको आपने बोला कि ये फहाश है, ये जिसने बात की आपने उसको बोला ये हाँ गश्ती है, ये वो है, ये बे। And when this conversation is coming into handy right now at the time of a disaster, because you never participated in it to begin with, now you are positing yourself as an authority saying कि नहीं इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता की जरूरत नहीं है? I am shocked at just the audacity of the kinds of conversations happening. That's all I'm gonna say on that. और तो अगर आपको इतना इंटरेस्ट है हमारी जरूरियात में और हाँ किसकी क्या प्रेफरेंस है, बात करें, फोन करें, मतलब हम जो है ना उन लोगों से आप बात करें ना। अगर आपको इतना पीरियड्स की टेंशन है तो आप कैंपेन शुरू कर लो। आप जो है ना हम्म उनसे पूछो उनकी जरूरत क्या है, और फिर उन्हें उन तक पहुंचाओ भी सही, जरा करके तो दिखाओ। बस बोलना आता है लोगों को, Yeah, जेन्युइनली सिर्फ बोलना आता है। yeah. आई मीन I बॉइल्स don't आई डाउन थिंक टू चॉइस, राइट? लोगों को यहाँ बैठ के आप अज्यूम करें कि पैट चाहिए कपड़े, आप भेज दें चीजें यार। they will know best what to do. Just send it to them rather than us sitting in Karachi and having these debates uselessly over Twitter. Sorry, Sajeer or Mariam, one of you was saying something. Mariam, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ दैट सेम साइकिल, जहाँ पे वही बात है कि कत्ल भी हो जाए औरत का तो वो इफ्स और बट्स और अगर और मगर और अच्छा फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ, फिर ये इतनी पढ़ी लिखी थी फिर उसको पता क्यों नहीं चला, फिर उसने रेड फ्लैग्स क्यों नहीं देख लिए, फिर उसको फलान क्यों नहीं हो गया टमका, ये द पार्ट ऑफ दैट सेम कॉन्वर्सेशन अगर मगर, basically हाँ considering women as second class, not, I wouldn't say even human beings, I don't think they consider women as human beings, just just something, some yeah. some sort of living beings. What I Kumar, find most sorry. interesting this time, I don't know if some of you also came across this, किसी ने मीम शेयर की हुई है कि शेर जो है वो हिरन को का शिकार कर रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि यू नो मर्दों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो औरतों को कत्ल ना करे, ये ऐसे ही है जैसे शेर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो हिरन का शिकार ना करे। एक तरफ मर्द मतलब कहते हैं हम अशरफुल मखलूकात हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम तो रेपिस्ट हैं, हम तो हैं। हम हम है मतलब आप हमें हमें क्यों बता रहे हैं कि आप रेप ना करें? ये तो नेचर है हमारा। मतलब हाउ डू ये, हाँ men accept even saying this about themselves, let alone anything else? It's just Okay, no, so let's take this conversation forward. Okay, you are saying you are animals. You are the lion that cannot help but kill the deer. So then let's talk about how to put you like behind bars, to restrict your movement, to restrict your these carnal instincts that make you want to kill. Let's talk about that then. Now, if you are admitting that you are so helpless that you see a woman and you feel the need to kill and rape and murder and harass and whatnot, then let's talk about what the next steps are. Let's talk about how you are a danger to society and must be, kept in within a certain
okay, I'm like losing words here, but But like it's such a stupid, हाँ it's such a जंगला. stupid thing to say because again, in that example, शेर हिरन को अटैक कर रहा है, हंट कर रहा है खाने के लिए. तो हम इतने ही जानवर हैं मर्द, तो ये तो मैं नहीं देखता कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, मुझे भूख लग रही हो, मैं मैकडॉनल्ड्स की खिड़की तोड़कर उनके किचन में घुस जाऊं, नगेट्स खाना शुरू हो जाऊं. ये तो मैं नहीं कर रहा. तो मैं अगर इतना ही जानवर का बच्चा हूं जिससे मुझे मेरी इंस्टिंक्ट्स तो कंट्रोल ही नहीं हो सकती, तो मैं ये हाँ खाने के साथ क्यों नहीं कर रहा जो सारे जानवर करते हैं. आई डोंट एवर डू दैट. यू डोंट सी दैट ऑन द स्ट्रीट्स के आप घर में खाना खा रहे होंगे, चार मर्द ज़ॉम्बियों की तरह घुसाएंगे कि भाई हम तो मर्द हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते. इट्स बिकॉज यू डोंट कंसिडर वुमेन एज एंटिटीज, एज ह्यूमन बीइंग्स. यू कंसिडर वुमेन एज ऑब्जेक्ट्स. एंड अ लॉट टाइम जब हम इस तरह की डिस्कशन करते हैं कि जी बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को आप बुरके पहना रहे हैं, औरतों को आप इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, उनके राइट्स नहीं है. एंड देन पीपल आर लाइक इसका क्या कनेक्शन रेप होने से. इसका ही तो कनेक्शन है. जब औरतों से उनकी इंसानियत छीन लेंगे तो शायद आप सड़क में जाकर किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं करते, लेकिन आप और मर्दों को सिखा रहे होते हैं कि ये औरतें नहीं हैं. खलील रहमान कमर जैसे लोग जब आकर कहते हैं कि मैं औरतों की इज्जत करता हूं, लेकिन ये लोग औरतें तो नहीं है. जब आप डिसाइड करते हैं कि कौन औरत कहलाने के काबिल है, और कोई अगर टिकटॉकर है तो फिर 500 मर्द भी उस पर चले जाएं तो टिकटॉकर फ्रॉड है. वो जो औरत थी वो मसला थी, वो जो 500 मर्द थे वो मसला नहीं थे. देन यू आर क्रिएटिंग अ सोसाइटी where these things happen, where these things are justified. So even if you don't go out of your way to commit assault, you are giving the narratives and you're creating these monsters. So please stop saying हाय अल्लाह हमारी सोसाइटी में जल्लाद और मॉन्स्टर कहाँ से आ जाते हैं. नहीं, आप 2+2 बना कर देते हैं, इसलिए 4 ये मॉन्स्टर निकलता है. अच्छा, मरियम have you जमाली. noticed the have you noticed the bro code with which they operate? इतना organized, मतलब depending on the level on which they can slut shame the woman who has been murdered. उनका ब्रो कोड जो है ना वो उस तरीके से ऑपरेट करता है. इवन मतलब जब नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था तो वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी ना, वो तो सीधी सीधी थी ही स्लट ना, मतलब कहते इसको भी इन्होंने स्लट शेम करने की कोशिश की. ये जो अभी रिसेंट सारा कम मर्डर हुआ है, उसको पहले कहा कि ये जो है ना चीटिंग कर रही थी अपने हस्बैंड पे, फिर जब वो नहीं चला तो फिर भी एक दूसरे को समझाने के लिए भी ना जेंटल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. ब्रो ब्रो यू डोंट अंडरस्टैंड ब्रो, तो सिर्फ 3 महीने हुए थे शादी करने की, शादी हुए हुए ये चीटिंग करनी. इतने प्यार से एक दूसरे को जो है ना वो एक पेज पे लेके आते हैं कि नहीं इसमें जो है ना हम लोगों ने थोड़ा सा स्लट शेमिंग थोड़ी कम रखनी है. लेकिन जो मतलब मैं हर दफा ये देखती हूँ कि टोनालिटी क्या है जब भी इस तरह का कोई सीन होता है ना. इस दफा तो जो टोन थी, जो खास तौर पे जो शुरू में जो टोन थी, वो तो ये थी हाँ हो गया, लिटरली हो गया. हाँ हो जाते हैं ना, मतलब एवरी गलती से टाइम हो गया बस. हो गया ना. नशा कर रहा था ना, ये भी तो देखो ना कि कितना नशा है, कितने नशे में था, ये भी तो चेक करो ना. और अब जो फिर उसके बाप के ऊपर जो इनका वो निकल रहा है, दुख दुख का इजहार के बाप को क्यों पकड़ के ले गए. मतलब लिटरली किसी ने कहा था कि बूढ़े बाप को तो छोड़ दो. लिटरली कोई मतलब इन्हीं का ब्रो ब्रो कोड के अंदर में से कोई ए, बोल रहा था कि बूढ़े बूढ़े ऐसे बाप टाइम पे झूठी बूढ़े खबरें बाप. फैलती हैं तो आई डोंट वांट, डोंट होल्ड मी टू इट, बट आई डिड रीड के उन्होंने, जो बच्चा था शाहनवाज, उसने मर्डर करने के बाद बाप को तस्वीर भेजी थी. सो क्लियरली एक केस बन सकता है कि बाप अकॉम्प्लिस थे या बचाना चाह रहे थे. तो इतना कोई कंस्पिरेटोरियल नहीं है बाप का अरेस्ट होना. जी मरियम. एग्जैक्टली वो मतलब आई एम जस्ट क्विकली गोइंग टू दैट ट्वीट कि किसी ने शेयर किया था कि फ्रॉम फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू Ayaz Amir arrest is legit. A son murders his wife with a dumbbell. It didn't happen all at once. If either of the parents have seen their son torturing the bride days and weeks prior to the final event and didn't intervene or reported it to the police, then they have contributed as well and will be punished for their part as per the law. एक दम थे तो भाई वो उठ के आपको जो है ना वो नहीं, वाकई दिस इज सच अ लेजिट पॉइंट ऑफ व्यू. और आई डोंट नो सजीर इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस आस्क द विलेज ग्रुप. उसके एंड उस उसकी तीसरी दिस दिस इज तीसरी शादी थी ना मरियम. उसकी तीसरी शादी थी. तो दिस इज कोई अ उसकी ग्रुप पहली लाइक 2 बीवियों का भी इंटरव्यू करे और पता करे कि पहली 2 कितने बीवियों को तो पैट. छोड़ो,
उस ग्रुप के अभी आई एम मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आज द विलेज, उसके अंदर कम से कम 3 खवातीन इस वक्त आ चुकी हैं जिन्होंने फुल ऑन डिटेल के साथ ये बताया है कि ये बंदा कितना बड़ा मैनिपुलेटिव चार्मर टाइप का ये सीन है, और और ये जो है ये इसने रिश्ता दिया हुआ था अपना किसी रिश्ता साइड में, और मैं इससे मिलने गई, नहीं हम वी एग्री टू मीट ईच अदर, और मैंने इसको अपने घर का एड्रेस भी नहीं बताया था, इसको सिर्फ मेरे जनरल घर के इलाके का पता था जहाँ पे मैं रहती थी। तो वहां पे ये पहुंच गया अपने दोस्तों के साथ, गाड़ी के अंदर 2 बंदे बैठे हुए थे, लड़के शड़के तो उम्र नहीं है, और ये थ्रू आउट ड्रंक रहे, और थ्रू आउट ये ड्रंक रहा, और थ्रू आउट ये वायलेंट हरकतें करता रहा, और फिर जो है मेरी मर्जी के बगैर जो है वो किसी उस रेस्टोरेंट में हम लोग चले गए जहाँ पे मैंने एग्री भी नहीं किया था मैं वहां पे जाऊंगी, और कहती है कि मैं इतनी ज्यादा नर्वस होती रही और इतनी ज्यादा मैं परेशान होती रही, और फिर समहाउ इसी तरह ही मुझे वो जैसे कहते हैं ना कि लपेट लपूट के किसी तरह जस्ट लाइक लिटरली अकॉस्टिंग समवन, मुझे पकड़ के अपने जो है ना वो चक शदाद वाले उधर ले गए, फार्म हाउस में ले गए, और वहां पे भी मैं जो है वो 3 4 दफा कहती रही कि आई डोंट वांट टू गो। फिर इवेंचुअली ये इंक्लूडिंग हिम और इसके वो जो 2 दोस्त थे वो इतने ज्यादा ड्रंक हो गए कि फिर दे इवेंचुअली अग्रीड टू लेट हर गो, and she said कि I'm gonna drive, and she then drove, and then she safely reached back her home। और इस तरह के 2 और वाकयात हैं कि मतलब दिस गाय वाज ड्रंक ऑल द टाइम, इसने ओए लेवल्स भी पास नहीं किया हुआ, ठीक है, ओए लेवल्स में भी तो 3 4 दफा फेल हुआ हुआ है। और ये जो चकसदार का घर है ये एक्चुअली तो इसकी माँ का घर है। अयाज मीर खुद के बारे में ये बात सुनने को मिल रही है कि उसने 4 शादियां की हुई हैं, 4 शादियां उसकी हुई हुई हैं, उसमें से 3 को पता नहीं उसने तलाकें दी हुई है या कुछ इस तरह का कोई सीन है, उसके There बारे was में पता also a चल। case, he was also accused in the Accused case of raping a 15 of year a old minor girl. Yeah, he was accused of raping a 15-year-old। तो मतलब अ, सिर्फ डम्बेल से मतलब डम्बेल से मारना तो वही बात है कि मतलब इट्स दी एंड Maybe let's लाइन। not mention this again and again. I mean, even as a man, just hearing the dumbbell is like, I don't know. बट आई मीन इफ Trigger warning on this podcast, honestly. ट्रिगर वार्निंग, बट आई एम एसेंशियली ऑफ द व्यू के दिस हैज हैपेंड, दिस इज हाउ शी वाज किल्ड, राइट? तो I, I, yeah. Maryam Jamali, thoughts on violence against women? We are also hearing a lot of cases, and I don't want to talk about that in the context of flood relief, because sometimes ऐसी चीजें एम्पलीफाई भी ज्यादा हो जाती हैं और शायद इतना ना हो, बट अनडिनाइबल होगा कि इस तरह की चीजें भी होती हैं अनफॉर्चुनेटली। It is a risk, but at least in our communities, there is a weird thing that if someone is assaulted, so uh, बंदे से पहले बाप उसे मार देगा. So if something like that ever happens, you hear about it. Like you can't not hear about it. Um, like these cases remind me of the times when there were people in our extended family. जो एक लड़की थी उसने फोन पे जो है ना किसी ने उससे जिस तरह रॉन्ग नंबर्स होते हैं ना, किसी ने बात की उससे तो उसने उसे वापस जवाब भी दिया, ऑल ऑफ दैट, एंड द गाय आस्क्ड हर कि मुझसे मिल लो, तो उसने शायद जवाब दिया कि मैं मिल लूंगी, शायद नहीं दिया, लेकिन वो घर से बाहर निकली एंड उसको उसके अपने बाप ने गोलियां मार के मारा, एंड नॉट जस्ट लाइक वन शॉट एंड दे आर गॉन, नो, इट वाज मल्टीपल बुलेट एंड देन द गर्ल डाइड. सो देयर इज जस्ट मतलब एक होती है ना ऑब्जेक्टिफिकेशन, नहीं हम औरतों को जो है ना, औरत इज्जत भी है आपकी, औरत को जो है ना अपने यूज करके डिस्पोज भी करना है, कुछ भी हो उसके साथ जाती हो, उसका मर्डर हो, फिर उसकी जो है ना रीजन भी वो खुद ही है. लेकिन दिस केस पीपल वर लाइक उसने उससे शादी क्यों की, अगर वो इतना बुरा था, अगर उसने 2 शादियां पहले की हुई थी और वो जो है ना इतना फेलियर ऑफ अ पर्सन, उसने शादी क्यों की? मतलब आप ये नहीं पूछते कि जो है ना हाउ डिड द मर्डरर
like literally have enough courage कि उसने कहा कि बस मैं इसे मार दूंगा and I will get away with it, because that's the या mindset. You will do भाई whatever you want and you will get away with it. मतलब एक होता है ना, अपने लड़की को हाथ लगाए, you will get away. No, you can murder a woman and get away with it. And Yeah. while this the most the ironic part is that while these two high profile किसी politician के बेटे का this violence has happened, there is actually a drama going on in Pakistan which is like super hit. कैसी तेरी खुदगर्जी, उसके अंदर वो लड़का बकायदा गन पॉइंट पे उस लड़की के साथ उसको कहता है कि मैं तुम्हारे सारे घर वालों को मार दूंगा अगर तुम मेरे से शादी नहीं करोगी, और जबरदस्ती उससे निकाह करता है। और इज दिस द शो जिसमें वो फोन सेक्स वाली क्लिप भी हुई थी, दानिश तैमूर वाला? हाँ 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 कि मेरा, हाँ हाँ, दैट दानिश तैमूर वाला कि तो मेरा नाम ले लो, मेरा नाम दोबारा लो। और वो सीन क्या है एक्चुअली कि वो उस लड़की को तंग करने के लिए उसको मतलब वो लड़की नहीं मान रही होती है, और वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वो उसके बाप को पुलिस के थ्रू जो है वो अरेस्ट करवा लेता है किसी वजह से। और वो लड़की जो है वो रोती रोती जो है ना वो उसको फोन करके पता नहीं क्या जो भी उसका नाम है, प्लीज मेरे अब्बू को छुड़वा दे। मतलब मतलब are you fucking kidding me with this drama that is going on? And while drama has been on air, one incident that happened in फैसलाबाद जिसमें वो जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट whatever जो भी उसने अपनी अपनी बेटी के साथ मिलके उसने एक अपनी वो क्लास फेलो एक 50 साल का, 50 या पता नहीं 60 साल का था, बहुत फेमस बंदा, उसकी बेटी की फ्रेंड थी। ठीक है, सिंस ओए लेवल उसने पहले उसको ग्रूम किया, फिर उसको उसको फिर उससे शादी करने का बोला कि मैं आई वांट टू मैरी यू, फिर उसने मना कर दिया। फिर जबरदस्ती उसको गन पॉइंट के ऊपर अपने पता नहीं वो गुच्ची के या वो गंदे गंदे जूते रखे, तो उसको बोला मेरे जूते चाटो, जूते को जुबान लगाओ। और वो वीडियो जो है दैट वीडियो वेंट वायरल, बट इट डिड नॉट गो वायरल फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि उसी दौरान ये फ्लड्स वाला सारा वो बीच में वो खबरें चलना शुरू हो गई थी। दिस हैज हैपेंड जस्ट लास्ट मंथ एंड नाउ दिस हैज हैपेंड कि दिस आई अनदर मीन, पॉलिटिशियन। या ये जो लोग सोचते हैं, बाय द ड्रामों की आपने बात की, हमें रिसेंटली भी पता चला, हमें लग रहा था कि हम शूट हुए हुए ड्रामे देख रहे हैं। अभी अभी न्यूज आई है कि वो एक्चुअली फिरोज खान के हिडन कैमरा थे, वो सारे रियलिटी शोज थे। वो हैं ही ऐसे, बिल्कुल, वो है वो ही वो ऐसे। वो है ही ऐसे इंसान। कैन बट ये जो आई केसेस भी हैं, इवन विद सारा, इवन विद नूर, इवन जो आपने फैसलाबाद की बात की, अगर लोगों का रिएक्शन ये देखकर ये होता है कि यार अच्छा चलो महीने में एक केस आ गया, नहीं, ये महीने में एक केस आपकी अटेंशन में आ रहा है, ये रोज होता है। आप डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स देख लें, यूएन थोड़ा कंजर्वेटिव है, 30 to 40% पे आता है, वो कहता है यूएनडीपी के मैरिड वुमेन इन पाकिस्तान फेस डोमेस्टिक अब्यूज। हमारे जो एचआरसीपी के मैं स्टैट्स नहीं हैं, दे मानती। पुट इट मोर लाइक 70 to 80%, 70 to 80 या percent married women in Pakistan face domestic violence, face या these issues. And I'm not berating social media. Obviously, when people are relatable, these things matter more. Noor was a friend to a lot of people. Sarah was a friend to a lot of people. Obviously, that will affect people on social media a lot more. But the unfortunate reality is things like this happen to hundreds of women every single week all over या Pakistan, just because या they don't make the news, just because हाय वो बीवी घर में फिसल गई, हाय किचन में एक्सीडेंट हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि पाकिस्तान में कितने वाकये होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त किसी अस्पताल में काम करता है, हाउ मेनी वुमेन आफ्टर गेटिंग मैरिड हैव एक्सीडेंट्स एट होम, जिसकी वजह से वो मर जाती हैं। अगर ये आपको स्टैटिस्टिक्स पता चल गए हैं तो आप इस तरह की घटिया बातें करना छोड़ देंगे शायद ऑनलाइन, और मे बी आई एम बीइंग टू होपफुल इन सम मेन। जी सजीर। Yeah, I just want to say that it's so telling that people like Firoz Khan, people like other alleged harassers and abusers and whatnot, who जिनके बारे में मतलब news आ चुकी है, like we've seen the हम्म images, क्या लोगों ने बोल दिया doctored है, everybody immediately believed the man in the situation and whatnot. People like Amir Liaquat, they have all collectively gotten, like they have all individually rather gotten more sympathy and हाँ the benefit of the doubt than या any of these women ever have in like या collectively.
अगर नूर नूर की जब बारी आई, किसी ने नहीं सोचा किसी की बेटी है, इंसान है, इंसान तो खैर छोड़ दो ना, वो तो है ही नहीं, किसी की बेटी है, किसी आदमी की बेटी है, किसी ने नहीं हाँ सोचा, वो सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन। आमिर लियाकत की डेथ हुई, ओ शिट, आमिर लियाकत तो अब तो मर गया है ना, अब तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। 50 वीडियो आएंगी उस बंदे की जिसमें उसने पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं किया, बट नो, नाउ ही इज डेड ना, सो वी कांट स्पीक इल ऑफ द डेड। सो वेयर डज दिस एम्पैथी गो व्हेन women आर किल्ड? आप देखो, उससे प्री प्री मर्डर तो आप यू हैव नो सिंपैथी व्हाटसोएवर फॉर वुमेन ना। पोस्ट की बात करते हैं, मर गई है ना औरत, लेकिन अब आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेट भी करना है। आपने ये भी नहीं देखना कि औरत कहीं पे सेफ नहीं है। कंदील को उसके भाई ने मारा, नूर को उसके दोस्त स्लैश बॉयफ्रेंड ने हाँ। मारा, सारा को उसके शौहर ने मारा। बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे बाप बच्ची को रेप करके मार देता है। तो आप बताएं औरतें सेफ कहाँ पे हैं? और आप फिर बताएं कि ऐसा, हाँ, हाँ, ऐसा क्या होना बाकी है जहां आप थोड़ा सोच के बोलेंगे कि नहीं, मे बी वी शुड लाइक गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी एज वेल। ये तो फिर वही बात आपने है। मरी हुई वही, औरतों को मशवरे भी देने हैं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट ये तो वही बात होगी, हम कटोरा लेके खड़े में हैं, प्लीज एम्पैथी दे दो, एम्पैथी दे दो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा। सारी एम्पैथी फिरोज खान के लिए, सारी एम्पैथी for the many people in the industry who have allegations against them उनके लिए, for people like आमिर लियाकत उनके लिए। तो अगर आपने एक बहुत क्लियर का डिसीजन बना लिया है कि आपकी empathy is reserved for people like these, then is there even a conversation that is to be had नहीं, anymore? देयर आयमा इज नो बेग कॉन्वर्सेशन। जलील हो गई ऑनलाइन फॉर हाँ, एलिजिडली हाँ चीटिंग। एंड फिरोज खान के केस में एवरीबॉडी इज लाइक वो घर नो, की बात है। हाँ, हाँ आयमा हाँ। पर्दा। बेग के तो बॉडी की जो बातें थी वो मीमें बन रही हैं। यहाँ पे हम्म फिरोज खान वायलेंस घर की बात है। हम्म, पर्दा डालते हैं ऐसी चीजों में, पर्दा डालते हैं ऐसी तो चीजों के बारे में। जस्ट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, वो जो एक है कॉमिक्स बाय अरसलान जो बनाता होता था हमारे बचपन से ही, कॉमिक्स बाय हम्म अरसलान, अरसलान नसीर, जब एनी खालिद ने जियो पे आके लाइव शो में रोई थी और उसने कहा था कि मेरे शोहर मेरे ऊपर चेयर्स फेंकता होता था और मुझे कुर्सियों, मेरे ऊपर उसने कुर्सियां फेंकी हुई हैं, मुझे उसने बैट से मारा हुआ है, मेरे बालों से पकड़ के उसने मुझे घसीटा हुआ है, एंड शी वाज ट्राइंग, दैट मैन मेड अ कार्टून आउट ऑफ इट, कि शी वाज अ गोल्ड डिगर एट दैट टाइम। एंड आई मीन, इट्स somehow I wouldn't even say ironic. It's just like now when this incident happened, ये जो अभी रिसेंट है, यार क्या नाम है इसका उल्लू के पट्टे का, फिरोज जिसका हम खान। बार बार नाम, हाँ फिरोज खान, उसमें नीचे लिखा है इसी इसी बंदे ने दोबारा, अभी चूंकि ये ड्रामों में भी आना शुरू हो गया, इसने दोबारा स्टेटस कुछ इस तरह का ट्वीट किया हुआ था कि बीवी जो है वो शोहर के पर्देफाश कर रही है और शोहर बीवी हम्म के पर्देफाश कर रहा है और गर्लफ्रेंड जो है वो बॉयफ्रेंड के पर्देफाश हो रहे हैं और गर्लफ्रेंड जो है वो बॉयफ्रेंड पे स्टोरियां लगा रही है। घर का मामला है ना, घर में रखो। उसके अगले दिन सारा की ये जो इसकी इसकी कत्ल की न्यूज आती है, तो यही लोग जो है वो गुस्सा आता है मुझे वाकई, ये जो मरियम, व्हाट यू वर अर्लियर सेइंग, कि इन्होंने जो ट्वीट्स का एक कोटा पूरा करना होता है, एक कोई जो ना टोन डेफ चूतिया किस्म की ना, वो पिक्चर टाइप वो ट्वीट बना देते हैं कि डेड डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन डेड डॉटर। तो भाई वो एक है ना जिंदा औरत, वो जा रही है ना, अभी उसने, जिंदा औरत ने कल परसों ही अपने शोहर के बारे में कहा है कि मेरी इसके साथ जो है ना रहना नामुमकिन हो गया था, 4 साल में इसके साथ रही हूँ, मैंने इसके टुड्डे भी खाए हैं। तो वो तो अभी जिंदा है, उसके मरने का वेट कर रहे हैं आप लोग बैठ के। वही या पिटी पिटी। I legit, I am actually not very active on Twitter, but this time I legit wanted to get some information, some sort of conversation. I was actually looking at, कोई conversation कुछ हो रही होगी कोई meaningful, other than those घटिया tweets. But everyone is like retweeting, rehashing the same thing. She should have thought about it. I want to talk about this one thing, the thing that she should have made better decisions, that she should have thought. Do you guys, do you panchos realize, actually you do, but I'm gonna like just put it out there for you, how manipulative, how big of a liar, how big of, क्या उसे कहते हैं कि two-faced assholes you men are. You know exactly हमने किस तरह से कैसे औरत को फंसाना है, हमने कौन कौन सी बातें उसको करनी है, हमने किस तरीके से उसको जो है ना उसको रेड फ्लैग्स अपने नहीं शो करने, हमने किस अभी मतलब, ये तो मतलब कितनी ऑफ बीटन सी स्टोरी है कि अभी खासतौर पे फेमिनिस्ट सर्कल्स में ये बात होना शुरू होगी कि जानबूझ के
किसी फेमिनिस्ट लड़की को फंसाएंगे, उसके सामने सारी सारी उसकी ठीक ठीक बातें करेंगे, कोई रेड फ्लैग नहीं शो होने देंगे, सारे जो है ना टिक बॉक्सेस सारे वो करेंगे पूरे। उसके बाद जब देखेंगे कि ये कंफर्टेबल हो गई है, ये इमोशनली हमारे काबू में आ गई है, उसके बाद फौरन से अपना जो है ना वो सारा आपा खोल के सामने रख देंगे कि तुम जीन्स नहीं टाइट पहन सकती, तुम दुपट्टा नहीं कर सकती, तुम फलानी कसम में टांगे तोड़। ये तो मतलब बहुत ही नॉर्मल कहानी है। इस बंदे के बारे में खासतौर पर जिसने अभी ये मर्डर किया है, इस बंदे के बारे में कोई आज द विलेज के अंदर वो जो दो तीन बंदियां हैं जिन्होंने पूरी पूरी अपनी स्टोरी लिखी है डिटेल में, उन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, हाउ मच ऑफ अ चार्मर दैट पर्सन वाज। डू यू रियलाइज किसी बंदे के बारे में कहना कि सो नाइस, जब मैंने बात की तो सो नाइस, यू लुक सो जेंटल। भाई दिस इज वन ऑफ देयर वार तरीका है वारदात, मान जाए आप लोग। Achha, I'm seeing a few comments here in the chat, and I really want to address a few of them because I feel like हम जो पिछले I don't know 1 घंटे से बातें करें वो लोगों आप के मत टेंशन ले, मैं ले रहा हूँ फड्डे, कमेंट सेक्शन में मैं हूँ, टेंशन I मत ले, वहां के सारे फड्डे मेरे पे छोड़ दे आप अपनी I बात है। but you know एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आई थिंक अभी किसी ने बोली है कि why don't women see that these men are toxic? Do you think they come with like fucking CVs कि मैं या इतना level of नहीं, toxicity माथे पे लिखा होता है, माथे पे लिखा होता है मर्दों के ना। वो आके आपको बताता है कि वो अब्यूजर है, वो आपको पहला चमाट हाँ लगता है, दूसरा चमाट लगता है, तब जाके आपके दिमाग में सेटल होता है कि मैं पिट रही हूँ, ठीक है। और हाँ एंड द फैक्ट दैट लाइक जस्ट पिनिंग द ब्लेम ऑन वुमेन कि आपने क्यों ऐसा डिसाइड किया भाई। हाँ आप बताएं, फर्स्टली तो देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट दैट आई सॉ कि पोस्ट अ सर्टेन एज यू ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट चॉइसेस फॉर वुमेन ना, बिकॉज अगर औरत हम्म का डिवोर्स हुआ हो, अगर उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो, अगर उसके बच्चे हो पहले से, तो यू आर ऑलरेडी सेइंग दैट यू डिजर्व द एब्सोल्यूट वर्स्ट because you are a हम्म divorcee, because you are somebody who has children, because you are past a certain age. This is the pool of men that you get, and that pool of men isn't great to begin with. ये जो पूरा existing pool of men है ना, that itself is not great to begin with, because every man has some sort of like misogyny embedded in him. वो you pick your evil, like, and some people unfortunately do not get to see that evil play out while they are making those decisions, and they find out much later. But even in the existing pool, we're picking our या evil, we're choosing the lesser evil, if that. So like when you pin the blame on women, आप ये भी तो देखिए कि हमारे पास choices क्या हैं. I'm not saying या every man is equal. Obviously, that's not true. I understand that. But almost every man has enough misogyny in him to make him या a threat to us at a certain point in time. Whether that's in the form of verbal abuse, whether that's in the form of emotional abuse, whether that's in the form of physical abuse. And if you don't understand that, like, अगर आप एक उस तरह की औरत हैं जिन्होंने, you know, there are many women who come to terms with these things, who settle, who kind of turn off that switch in या their head and like, you know, this is our life and हम deal करते हैं तो आपको भी करना चाहिए. आप deal करती हैं, very good, I applaud your strength, you shouldn't have to, but if या you have decided that that's what you want to do, great. But don't tell me or my sister or my friend to how that they must do the exact same thing. This is not a universal framework कि हाँ मुझ पर तशद्दुद करते रहो, मैं चुपचाप बैठ के लेती रहूंगी, एक दिन मेरा मर्डर हो जाएगा शायद, तो लोग मेरी पुरानी पुरानी तस्वीरें निकाल के बोलेंगे अल्लाह देखो ये कितनी नंगी लड़की थी, इसके ऊपर हम अब स्लट शेमिंग करते हैं. दैट इज नॉट द फ्रेमवर्क आई वांट टू सेट इन प्लेस फॉर माई सेल्फ और माई सिस्टर और माई फ्रेंड्स और एनीबडी दैट आई, एनी वुमन दैट आई नो. सो ये मुझे बात मेरी समझ से बाहर है थोड़ी. ये कमेंट में देख रही हूँ, आई डोंट एग्री विद मरियम, वी वुमेन नीड टू लर्न टू कैंसिल। मैंने आई एम सना, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट दैट यू डोंट एग्री विद, दोबारा आई थिंक प्लीज वो रानी मुखर्जी बताएं। वाले टाइप बात है वो, जो कि हाँ मार्शल आर्ट्स वी शुड डू मार्शल आर्ट्स, इट्स सॉर्ट ऑफ हाँ दैट, इट्स सॉर्ट ऑफ दैट, आई थिंक के हमें 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 ताकतवर होने की जरूरत है हाँ भाई, वो इधर और तो नहीं. आई थिंक एनी टाइम पीपल टॉक अबाउट दीज थिंग्स, पीपल आर लाइक नहीं बट वी शुड, हाँ आप करें, आपको मार्शल आर्ट्स करना है आप करें, आपको कौन रोक रहा है, आपको सेल्फ, आपको जो करना है आप करें, बट दैट शुडंट बी द कॉन्वर्जेशन. वी शुडंट ऑलवेज पुट द स्पॉटलाइट on what the victim was doing, what the victim should have done, what victims in general should be doing. Let's change that spotlight and let's change the narrative. The person who is responsible is the oppressor, is
is the assaulter, is the violent person. So what that person was doing and what that person should have done is what the conversation should be. हम सारी conversation victim के around focus कर देते हैं, and that is what adds to the victim blaming culture, because once you start talking about what victims should do, then anybody who falls short of that perfect standard that you've created suddenly becomes the problem, right? A woman, a mother in Pakistan, the most respected thing in the world, men get away by saying हमारे घर में माँ बहन है, तो सडनली हाँ वो बस एग्जॉनरेट हो गया. वो एक गाड़ी में थी अपने बच्चों के साथ, उनके 2 बच्चे उनकी गाड़ी में उनके साथ थे, एंड somehow the national narrative was that it's her fault. Literally, the police that we pay from our tax money to protect us, उन्होंने क्या या बोला कि ये क्या कर रही थी मोटरवे पर. तो या ये उस जो टाइम सारी पे, बातें हैं कि हाँ, औरतों को ताकतवर बिल्कुल होना चाहिए, कोई नहीं रोक रहा, जो जिसको सिखाना है जो करना है करें. बट व्हेन क्राइम्स हैपन, इफ वी मेक दैट द कन्वर्सेशन, इट इनएविटेबली टर्न्स इनटू विक्टिम ब्लेमिंग. जी मरियम अच्छा जमाली. इन कुछ सॉरी मरियम आप बोले. I was just gonna say, like, as a woman, we've all been in the situation where you have been groped, and even if you want to, you can't move a single muscle. यस. मतलब अगर आप बायोलॉजी जानते हैं तो इसे कहते हैं फ्रीज होना. हम्म. ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है. मतलब हम्म. Yeah. मैंने देखी थी एक वीडियो जो है ना, इट वाज सर्कुलेटिंग, जिसके अंदर उस औरत को थप्पड़ पड़ता है तो वो दोबारा थप्पड़ मारती है उसे, कहती है कि खबरदार इस तरह हाँ दोबारा किया. ये भी एंड पीपल वर सर्कुलेट हो लाइक, रही है. ये करना चाहिए था सारा को, ये करना चाहिए था नूर को. भाई आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन में हो, अल्लाह ना करे आप इस तरह की सिचुएशन में हो, तो आपको पता चलेगा. मतलब मैं हम्म. ट्यूशन पढ़ने जाती थी, मेरे हाथ में टेजर होता था, लेकिन मुझ Yeah. में जो है ना, देयर वाज आई वाज लिटरली इन एन एली अलोन, एंड देयर वाज अ गाय हम्म. मूविंग, एंड आई वाज सो स्केर्ड, आई वाज स्केर्ड टू डेथ एट दैट पॉइंट. लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे ऑन करूं और मैं उसे हम्म. डराने की कोशिश करूं. मतलब आई कुडंट हाँ. इवन मूव. एंड दैट इज कॉमन, दैट इज लिटरली व्हाट हैपेंस. बट नो, अगर जो है ना आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको मार्शल आर्ट्स नहीं आती, तो आपकी हाँ. गलती है. और दूसरा एमएमए ये भी नहीं सिखा, एमएमए भी नहीं, क्या करें हम लोग. दूसरा ये कि आप औरत, ये सारी यहाँ पे औरतें रिलेट करती होंगी. कई दफा ऐसा मौका आता है आप थक चुके होते हैं, आप थके हुए होते हैं ऑलरेडी. मुझे याद है एक दफा लाहौर में मैं वो कोई बड़ा फैंसी सा होटल था, वहां पे कुछ कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कवर करके मैं वहां से निकल रही थी. सख्त गर्मियों के दिन थे, आई वॉज डिहाइड्रेटेड, आई वॉज एग्जॉस्टेड. और उस होटल के बाहर कोई इस तरह ही कोई वो मर्द जो है वो 2-3 बैठे, तो उसने जो ही मैं बाहर निकली उसने अपना मोबाइल निकाल के मरियम, दे आपको मैं गुड न्यूज दे दिया. दूं पहले आपकी स्टोरी से. आपका हम्म. प्रमोशन हो गया है. उमर कह रहे हैं, वुड यू फ्लैश डॉलर बैंड्स इन अ क्रिमिनल नेबरहुड नोइंगली. सालों साल औरतें जो पाकिस्तानी लॉलीपॉप थी, वो अबे डॉलर बैंड्स चूतिए, बन चुकी हैं. ये औरत डॉलर डॉलर बैंड्स बन चुकी हैं, तो $250 जा चुका है. पहन चो एक भी नहीं, औरत. मल्टीपल डॉलर बैंड्स औरतें हो चुकी हैं. एक लॉलीपॉप जो $5 की मिलती थी, अब वो औरतें डॉलर बैंड्स हैं. मिफ्ता इस्माइल, महंगाई तूने इतनी कर दी. बेशरम बेशरम, शर्मो हया से आरी इंसान. हम लोग इसी चीज का रोना रो रहे हैं कि औरतें होती हैं, औरतें इंसान होती हैं. अशरफुल मखलूकात के अंदर कुरान में औरत और मर्द दोनों हैं, सिर्फ मर्द नहीं है. ठीक है, बहन चोद, इसका यही जवाब होगा. बैक टू योर स्टोरी. व्हाट द फक. स्टोरी ये थी कि मतलब मुझे नजर आया कि उसने मेरी तस्वीर ली थी, ठीक है, एंड आई वाज सुपर पिस्ड ऑफ, बट आई वाज आल्सो सुपर एग्जॉस्टेड एट दैट टाइम. आई वाज लाइक यार मैंने घर जाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने एक गिलास पानी पीना है. मैं इस कुत्ते के मुंह लगूं यहाँ पे खड़ी होके 15 मिनट और कि मैं अपना काम करूं घर जा. Half of the time, and this is something that I have been feeling lately a lot more. I am just exhausted mentally, emotionally. मेरा दिल नहीं करता वो जो ट्वीटों का कोटा पूरा करने का और स्टेटस अपडेट करने का और वीडियोस लगाने का, मेरा नहीं. तो मैं कहती हूँ मैं क्या बोलूं, बोल चुकी है ना सारी चीजें एक दफा, क्या बार बार उसको रिहैश करूँ, रिहैश करी जाऊं वही वाली सारी सारी चीजें. Yeah. क्योंकि इस तरह के कुत्ते जो है वो हम लोगों को कभी डॉलर से, तो कभी जो है ना वो ऑरेंज विदाउट पील एंड ऑरेंज विद पील पानी के अंदर डूब गया. अगली दफा केला आ जाएगा, उससे अगली दफा जो है वो पता नहीं क्या ले आएंगे, नाशपाती ले आएंगे. ये मतलब Oh. हमने तो ये सुना है कि इस तरह के हाउस देखिए होल्ड में बहुत मरियम, ज्यादा बड़ी खरबूजा क्वांटिटी अपने
खरबूजा बड़ी छुरे पे गिरे या छुरा खरबूजे बात पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे ये अच्छा, मुझे एक चीज, एक और भी मुझे चीज मैं इनसे मर्दों से पूछना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोग जो है ना वो फर्स्ट क्लास ह्यूमन बींग्स के तौर पे पाकिस्तान में रहते हैं। आपको एजुकेशन भी बेहतर मिलती है, आपको खाना भी बेहतर मिलता है, आपका एक्सपोजर भी बेहतर होता है आपस में। फिर भी आपकी अकल जो है वो मतलब बिट्टों के अंदर ही है, और वो अच्छा, भी बेशर्मों की तरह, बेशर्मों की तरह। somebody very interestingly somebody is saying lol you are expecting ashraf नहीं क्या comment थी, expecting a criminal to be ashraf al makhlook ये उमर ही कह रहे हैं। तो I want to understand कि again like circling back to the previous argument कि जो हरासर होता है, जो रेपिस्ट होता है, जो क्या कहते हैं कोई भी और तरह की मर्डरर होता है, वो ये तो इट्स नॉट ट्रू दैट दे बिलोंग टू अ सर्टेन तबका ना, लाइक मतलब वो तो जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं the past the two that I'm particularly talking about, which would be Sarah and Noor, these men have been educated, these men have been privileged, these men come from good families. So what exactly, like what further या excuse do you want to use, right? Like या I want to know, where do your excuses end? Where do your या excuses end for women? And when does that quota of excuses end for your empathy for women to begin? Because वो या चीज मिसिंग। ठीक है, आप कह रहे हो ओके क्रिमिनल अशरफुल मखलूक नहीं है, ओके वेरी गुड, तो व्हाट अबाउट द कॉन्वर्जेशन दैट हैपेंस आफ्टर दैट? व्हाई इज इट स्टिल अबाउट द विक्टिम? लाइक आई फील लाइक कि हम सर्कल्स में जा रहे हैं एंड इट्स द सेम कॉन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर अगेन, बट भाई बेस, आई इसका बेस, Sajeer, बेस तो unfortunately, this बना is a लें circle हम। we are या stuck Can we in. have a baseline agreement to call them criminals and crimes? Because we don't even do that. आप जो बात कर रहे हैं, would you go in a neighborhood, आप कोई स्टेटिस्टिक्स, कोई रिसर्च उठा के पढ़ लें, close to 2/3 of assault happen in the homes. वो कोई फैमिली मेंबर होता है, वो कोई ना कोई हाँ घर के अंदर होता है। तो ये जो क्रिमिनल्स इन नेबरहुड्स वाली घटिया बातें हैं ना आपकी, जब आपके हाँ घर में हो, आपकी उम्र 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 13 साल हो, वो बैंड ऑफ डॉलर्स नहीं है कि हर वक्त उसको सेफ के अंदर आपको रखना पड़ेगा। दिस आइडिया दैट क्रिमिनल्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट, लाइक सजीर सेड, अगर हर मर्द क्रिमिनल ही है जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, जो अपनी बेटियां बहनें भांजियों भतीजों नवासियों के सामने भी नहीं संभाल सकता अपने आप को, तो फिर मर्दों को सबको जेल में डाल दें। अगेन ये हम नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं। यू नो अ लॉट टाइम्स मेन व्हेन योर दे रिस्पोंड विद आर यू सेइंग ऑल मेन, नो यू आर सेइंग ऑल मेन। When you या say men are animals and men are lions and men cannot control themselves and this is what men will do, you are the one who are saying all men are rapists. I'm not saying that, but if you are saying that all men are rapists, then the only logical conclusion is that if somebody is a rapist, then they should be in jail. या तो एब्सोल्युटली। मेरा ख्याल है कि among a lot of red flags that these such men show up, one of the red flags that we should include is also taking a picture with a lion or comparing yourself to a lion. Because if you Lion? see recently with a शेर, अभी recently अच्छा, if you see ये जो अभी recent murderer है, जिसका क्या नाम है, alleged भी मैं नहीं कहूंगी, ये murderer है। शाहनवाज। हाँ, उसकी भी शेरों के साथ तस्वीरें हैं। ठीक है, तो मतलब आपका क्या ऑब्सेशन क्या है शेर के साथ? क्योंकि आई Well, ऑल्सो मतलब this criteria, let's add like followers of Jordan Peterson, and if they ये are तो like मेजर रेड फ्लैग। overly overly into तारिक जमील, ठीक है। एक होती है कि आप रिलीजियस स्कॉलर को जो है ना सपोर्ट करते हैं, यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड योर नॉलेज, यू really getting into the spirituality of it, and then you have this man who all he does in every single one of his talks is promise you 70 हूरे। उन हूरों की फुल HD जो है ना डिस्क्रिप्शन, ऐसे लगता है कि किसी स्मट नॉवल से निकाली हुई है, वो आपको देगा। एंड देन मतलब these are the people that are perpetuating it, honestly, like जो या है ना, दे जो आर जो एटलीस्ट जो मिडिल 100%। मिडिल और अपर मिडिल क्लास है, जो इनकी हम अल्फा मेल है, ये बीटा मेल है, ये सिग्मा मेल है, तो क्या है ये क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हो? और जो है ना उनकी सेम वही घिसी पिटी बातें होती हैं कि जो है ना रिवर्स सेक्सिज्म होता है, रिवर्स रेसिज्म भी होता है, सब कुछ रिवर्स होता है, विक्टिम है तो हम है।
हाँ मतलब द डिसोनेंस आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आप पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान में एक सुन्नी मर्द होकर आप कह रहे हो कि विक्टिम मैं हूँ या और कोई भी नहीं, मैं विक्टिम हूँ, मुझे सिंपथी दो, मुझे कंपैशन दो। मतलब आप आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हो? आप क्या हो, पहले बता तो दे जरा। अच्छा, यू मैं नो ना माई ऑन 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 इसमें मुफ्ती तारिक मसूद को भी ऐड कर लें। जब डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन बिल आ रहा था तब उनके इस तरह के बयान आ रहे थे। बोलो भाई क्या होगा अगर अगर ये बिल पास हो गया तो फैमिली सिस्टम खराब हो जाएगा। क्यों भाई इवन इमरान बताओ। खान को ऐड कर दे। मर्द इमरान खान मर्द मर्द ऑल्सो सेड नो ऑन वन ऑफ दोस बिल्स। भाई अगर ये पास हो गया कि बीवी को मारें, वायलेंस करें, वो छोड़ सकती है, तो मर्द बोलेगा मैं पागल हूं कि मैं इसको खिलाऊं पिलाऊं और फिर ये उठ के चली जाए। तो ये फैमिली निज़ाम खत्म हो जाएगा। तो अगेन हम ये बातें नहीं कर रहे, ये आप लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमारा फैमिली निज़ाम बना ही औरतों पे जुल्म करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, ये मुफ्ती बिल्कुल तारिक मसूद का 100 बयान है। तो अगर ये फैमिली में। इसी पे हाँ निज़ाम बना है कि हमारी सोसाइटी चल ही तब सकती है जब एक मर्द के पास औरतों को मारने के हकूक हो, और औरत अगर मारे बर्दाश्त करेगी तो हमारी सोसाइटी चलेगी। आई एम नॉट रियली श्योर अ सोसाइटी लाइक दैट शुड रन इन दैट केस। एब्सोल्युटली। ये दो तीन चीजें जो मुझे बात करनी है। एक तो somebody said in the comments that ये शान allegedly Shahnawaz's wife was cheating on him. You know, it's so weird. I don't see people trying to burn Feroz Khan right now. Like ये जो सब लोग बोल रहे हैं ना कि like cheating is the ultimate sin and whatnot. I don't see people trying to go outside Feroz Khan's house and like burn him. I don't see people trying to do this to Adam Levine either. So clearly, the cheating allegations and using that as an excuse is also just limited to women. कि अगर ये बंदी चीट कर रही थी तो इसको कत्ल कर दो बिकॉज हाउ डेयर यू। ठीक है, ओके, इफ दिस इज योर आर्ग्यूमेंट, हाउ आर यू प्लानिंग ऑन टेकिंग अकाउंटेबिलिटी व्हेन मेन चीट एज वेल? बिकॉज फिर तो आप सब गए, फिर तो आप सब गए, कोई आदमी बचेगा ही नहीं। Like if that is the case, because how many faithful, like I'm going on a tangent, but how many faithful men, like इतने सारे आप लोग जो सारी अपनी ट्रिप्स पे जाते हो, बाकू की ट्रिप पे, थाईलैंड की ट्रिप पे, बैंकॉक की, फिर तो आप सबको कैस्ट्रेट कर देते हैं। फिर तो यही रह गया ना, अगर हाँ अगर कॉन्वर्सेशन ही है कि चीटिंग इज मर्डर, चीटिंग इक्वेट्स लाइक इज मर्डर सेंटेंस, फिर तो आपके कोई मर्द भी नहीं बचेंगे। दूसरी बात ये, somebody has said equating conversations like these to टॉकिंग, लाइक किसी ने बोला अगर हम आप इस तरह की बातें इनेबल करते हो तो why shouldn't people also showcase like stuff like domestic violence? Do you understand that these conversations and the conversations around domestic violence and misogyny are completely different? Like, do you understand that you cannot conflate the two? Like, do you understand कि औरतें बैठ के बात कर रही हैं against domestic violence, that is a separate issue than people showing women being beaten on screen. That does nothing to evoke sympathy for women. That does, like, mere paas tum ho came out and the world collectively decided that या that womankind is evil because one woman was shown to cheat on screen on Humayun Saeed or Adnan Siddiqui, I ओए don't know होए, which. हार्ट अटैक And ही आ गया भाई। दैट वाज इट। उसी वक्त जो दूसरा एक शो आ रहा था, कोई पता नहीं कौन सा, जिसमें कोई बंदा अपनी नंद के ऊपर लाइन मार रहा है, दैट्स ओके। लाइक शोहर क्या कहते हैं, द फादर इन लॉ हिटिंग ऑन हिज डॉटर इन लॉ, completely fine. That is a consistent theme in every one of your shows and nobody seems to mind that. So when you talk about these things, I really want you to sort of consider what you're saying. एक दफा प्रोसेस करके सोचे कि जो मैं चीज बोलने वाला हूँ, बोलने वाली हूँ, डज इट मेक सेंस व्हेन आई पुट इट आउट ऑन पेपर? डज इट मेक सेंस टू मी इन माई ओन हेड? बिकॉज इतना तो कोई लेबर नहीं कर सकता ना कि बैठ के आपको बेसिक्स सिखाए। बेसिक्स ऑफ थिंकिंग तो कैन नॉट बी टॉट टू यू, दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट डू ऑन योर ओन। तो इस तरह की कॉन्वर्जेशन अगर हो रही है तो फिर तो हम बहुत ही फकते हैं। नहीं, दिमाग से नहीं सोचते। अभी एक क्लिप वायरल हो रहा है किसी ड्रामे का, जो हस्बैंड है वो थप्पड़ मारता है बीवी को और बीवी आगे से हाँ उठ के थप्पड़ मार देती है। लॉट ऑफ मेन आर शेयरिंग दैट कि ये औरतों को इस तरह शेयर होना हाँ चाहिए, फिर डोमेस्टिक वायलेंस खत्म होगा। आई थिंक सबा बानो मलिक का उसके भी रिप्लाई आया था कि क्या आप लोग पाकिस्तान में नहीं रहते? हाँ क्या होगा? क्या हमें नहीं पता क्या होगा इसके बाद? अगर एक इन मोस्ट हाउसेज इन पाकिस्तान जो हमारा पेट्रियार्कल निज़ाम है, अगर मर्द थप्पड़ मारे और पीछे से पलट के औरत थप्पड़ मार दे, फिर उसके बाद उस औरत के साथ इन मोस्ट ऑफ दीज हाउसेज क्या होगा हमें नहीं हाँ पता।
हम नहीं रहते हाँ पाकिस्तान में, हम हमें हमें कुछ नहीं पता होता, हम बस ये समझते हैं यार औरत की गलती, डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो पलट के थप्पड़ क्यों नहीं मार देती. सो दीज थिंग्स पीपल ओनली से so that they can continue saying the misogynistic bullshit that they do regularly, and they can get away with calling feminists all kind of terrible names अच्छा अच्छा, and there is one more, shutting down any common sense from penetrating the incel armor that they wear. जी मरियम. there was one more argument that came forth. uh, वो ना उसने बहस कर रही थी वो, द एन आवर और सो बिफोर शी वाज किल्ड, वो बहस कर रही थी, जुबान बहुत चला रही थी। तो जुबान भी आपने नहीं चलानी। बेसिकली सजीर, यू वर आस्किंग ना कि आप लोगों को नजर नहीं आता, इन लोगों को नजर आता है। इन्होंने बेसिकली हर उस चीज के अंदर से गुंजाइश और जस्टिफिकेशन निकालनी है, और उसमें से औरत को स्लट शेम करना है, और उसको उसका मुंह बंद कराना है, और उसको वायलेंस के साथ, जुबान के साथ वायलेंस से उसका मुंह बंद कराना है, या बाय फोर्स, जहां पे इनको लगे कि औरत कुछ भी ऐसा करिए जिससे इनकी पावर और इनकी एजेंसी में हल्की सी भी कमी बेशी आ रही है। ठीक है। या अभी अभी या अभी जो सारा के बारे में जो स्टोरी आउट हुई थी, वो ये थी कि वो पैसे वापस मांग रही थी, क्योंकि उसने इस अब वो जो कातिल है उसको गाड़ी लेके दी थी। एंड देन व्हेन शी रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट व्हाट इट सीम्स, तो शी वाज स्पेशली बैक हियर पैसे मांगने, अपने पैसे वापस करने के लिए। शी वाज एक्चुअली एट दिस पॉइंट ट्राइंग टू गेट आउट, she was wrapping up her shit basically. And yeah, um, पढ़ाई I again, शढ़ाई का अच्छा कमेंट है कि ironically when somebody is drinking and smoking on screen there is a disclaimer, but when there is violence shown there is not a single disclaimer. yeah. I'm sorry I start speaking when other people are speaking because मैं chat वाली window देख रहा हूँ और no मैं ये problem. zoom वाली window नहीं देख रहा होता तो मुझे नहीं पता चलता कि कोई और बोलने वाला है. So sorry सजीर, मैंने आपको काटा, but go ahead. No, I'm just also looking at the comments, and there's this one comment talking about, can you also please talk about the violence men face in these communities and whatnot. मैं चलो जी। एक सेकंड, मैं तो आगे से कह रही हूँ कि men are also oppressed, मैं कह रही हूँ कि men are oppressed, ठीक है, पर इसका ना बर्डन मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। मैं जो हूँ ना एज एन औरत, वो काफी ज्यादा ओप्रेस चल रही है, मेरे बहुत सारे मसले हैं जो मैं डील कर रही हूँ। आपको एज अ मैन किसी ने रोका नहीं है अपनी इस तरह की कॉन्वर्जेशंस करने से, एंड नॉट विद द एक्सपेंस बीइंग like with on at the expense of women, where you're like women are the problem, because we are actively telling you what the problems are. What are you going to do about it? आपकी थेरेपी भी हम लोग करेंगे बैठ के यहाँ पे, हाँ आपको रिहैबिलिटेट भी हम लोग जो हमें चमाटे पड़ रही हैं घर पे, हमारे साथ इमोशनल अब्यूज हो रहा है, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, हमारे रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसके बीच में हम नहीं, हम हमें वी हैव टू क्लियर आउट अ स्पेस फॉर यू गाइज एज वेल, एंड वी हैव टू टॉक यू थ्रू योर प्रॉब्लम्स. Like, is the onus really on us? Why? Who is stopping? I really want to understand who is stopping men from having these conversations. ये सब द पाकिस्तान एक्सपीरियंस जब लाइव जाता है टॉकिंग अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उस वक्त आपको याद आता है, या आपको बगैर उस इस 1 घंटे के जो 23 घंटे हैं उसके अलावा आपको याद नहीं आता, जो आप हाँ रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के खिलाफ जो बदतमीजियां कर रहे होते हैं, जो आप हाँ स्टैंडर्ड पेट्रियार्की अपहोल्ड कर रहे होते हैं, तब आपको याद नहीं आता. ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा खुद को अपना इतना जो मर्द इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग और वो जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं ना, थोड़ा आप लोग भी हिम्मत करें, मेहनत करें, अपनी पॉडकास्ट शुरू कर लें, अपने आप के बीच में हाँ कॉन्वर्जेशंस कर लें, ट्विटर में पे बातें कर लें. ये टॉकिंग अबाउट विमेन should not be your priority in the context that you are already talking about. आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं कि ओ लेट्स टॉक अबाउट मेन एंड हाउ टू रिहैबिलिटेट मेन एंड मेन और आदमियों की मेंटल हेल्थ. वो हम तो नहीं करेंगे ना बैठ के, क्योंकि फिर तो एक चॉइस हो गई कि हम या तो अपनी बहनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका मर्डर रहा है, या आपकी जो मेंटल हेल्थ फक हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं. हाँ ये दो चीजें आज साथ तो नहीं. आज मैंने एक मीम Don't देखी विच इज encourage them फनी. though. मैं गाली देने वाला हूँ, सो प्लीज अगर But किसी को बुरी लगती है तो काट दें. कुछ मीम में हाँ भाई, मेरे सोसाइटी अलावा भी कोई गालियां निकाल ले। सैड सैड पराठा ने आज मीम पोस्ट की हुई थी, सोसाइटी डजंट लेट मेन क्राई. तो रो ले ना बहनचोद, रो ले. सोसाइटी तेरे बाप दादा नहीं तो बनाई है, कर दे स्मैश हाँ पेट्रियार्की, रो. हाँ हाँ yeah, रो।
come smash the patriarchy with us. अपवर्ड भी आपको करना है, बेनिफिट्स भी उसके रीप आपको करने हैं, कंप्लेन भी आपको करना है. यू कांट हैव इट ऑलवेज ना, लाइक इस मुझे तरह से तो. मुझे सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है जब होमवर्क दे देते हैं ना, ऑनलाइन बैठे बिठाए. यू अले टेल मी व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म. एज लाइक भाई गूगल कर लो. नहीं नहीं, गूगल नहीं, गूगल. आई वांट टू नो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ, यू आर सो स्पेशल टू मी राइट नाउ फॉर दिस 5 मिनट. टेल मी कि आपकी डेफिनेशन क्या है. मतलब बैठे बिठाए होमवर्क दे देते हैं. और फिर अपने आप को टाइटल भी समझते हैं कि हम ये होमवर्क करके आपको देंगे. भाई गूगल कर लो बहन चोद. सीरियसली दिमाग Don't खराब. encourage them to make podcast either. फिर वही जो है ना वो, जिस तरह हाँ, मतलब yeah, yeah. टिकटॉक में अक्सर देखती हूँ, लोग आ हाँ, रहे थे, everyone should cheat, why you should not be a beta male. मतलब ये yeah. लोग फिर वही बकवास शुरू कर देंगे. उनको हाँ, जो है ना, they will feel like their own, हम लोग स्पेशल स्नोफ्लेक्स हैं, हमारे दर्द हमें जो है ना, ये औरत नस्ल ही ऐसी है, ऐसी कमीनी नस्ल है कि बस हमें एक्सप्लॉइट करती है और जो है ना बस अपने फायदे ढूंढती है. और जो है ना औरतें मक्कार होती हैं, झूठ बोलती है, चीट करती है, ये करती है, वो करती, मतलब आपने जो है ना कभी भी मर्द अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. उसकी जिंदगी में जितने भी मसले हैं, उसका इमोशनल लेबर भी आप करो, उसकी जिंदगी में जो फिजिकल लेबर है वो भी आप करो, उसके बच्चे पैदा करने वो पैदा तो आप करो, पालो उनको, ख्याल रखो उनको. और फिर आपको जवाब में जो है ना, हम लोग मारेंगे भी सही, पीटेंगे, कत्ल करेंगे, और फिर आपने कुछ बोलना ही नहीं है. आप कुछ भाई बोल रही है तो हमारा मेंस राइट्स का इशू है. yeah, पिछले 200 साल से हमारा ब्यूटी एंड बीस्ट ही चल रहा है कि yeah. जी वो बीस्ट है, उसको ब्यूटी आके जो है ना उसकी सारी जो है ना वो दुख जो है ना समेट लेगी और उसको प्रिंस में तब्दील कर देगी. हाँ, यानी कि बिल्कुल. आपने जो आप पैदा हुए हो, यानी कि आप नहीं मानते फिर अपने आप को इंसान, आप मानने को तैयार ही नहीं हो बिल्कुल भी किसी भी तरीके हाँ, से. वो शादी करके ठीक हो जाएंगे. एक तो ये इस बात पे तो मुझे गुस्सा आता है ना, जब इनको ऑलरेडी पता होता है कि ये साइकोपैथ्स हैं, ये जो है ना इन्होंने ऑलरेडी इस तरह की हरकतें की हुई होती हैं, और फिर भी ये लोग उनकी शादियां करवाते हैं और अगली बंदी को नहीं बताते कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने ये किस तरह का बंदा है. और फिर जब उसके साथ होता है तो देर लाइक हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी, वी डिडंट डू एनीथिंग, वी आर नॉट complicit in any of this. वो जो है ना Yeah. शादी से ठीक हो जाएगा बस. Let's just keep that going. एट दिस पॉइंट ये सारी बातें जो मर्द करते हैं वो बहुत ही डिसइंजेन्युअस है. बिकॉज किसको नहीं पता कि क्या हो रहा है. इवन दिस आइडिया कि जी पर्दा पर्दा डालो, अगेन मुझे नहीं पता कौन के घर में कैसा है, लेकिन एक जनरल मेरी फीलिंग ये है कि जो इंसान इस तरह की बातें करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में पर्दा डालो, ये बातें बाहर नहीं होनी चाहिए. एंड द सेम विद द मी टू मूवमेंट कि ये चीजें पब्लिक नहीं होनी चाहिए. डर्टी लॉन्ड्री हाँ. घर, ये Hmm. एक रेड फ्लैग है कि कुछ ना कुछ डीमंस हैं, कि कुछ ना कुछ खौफ है कि अगर ये हमने सरेआम कर दिया कि डोमेस्टिक वायलेंस की खुल के बात की जा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस को गलत समझा जा सकता है. अगर कोई मर्द हो और पता चले कि ये डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उसको सोसाइटी शन कर देगी. ना कि ऐसा हो कि आपके खानदानों में जो शादियां होती हैं सबको पता होता है अच्छा ये मर्द अपनी बीवी को मारता है, ये मर्द अपनी बीवी को मारता है, ये मर्द अपनी बीवी को मारता है. वो शादियों में भी आता है, वो तकरीबात में भी आता है, आप उसको डिमोनाइज नहीं करते. हाँ. यस, अब ट्विटर पे कहना बड़ा आसान है, दीज पीपल आर मॉन्स्टर्स, दीज पीपल आर क्रिमिनल्स. ईद पे जो क्रिमिनल्स मॉन्स्टर्स आपके शलवार कमीज पहन के आ रहे थे और आप उनसे ईदियां ले रहे थे, उनका क्या? वो क्रिमिनल्स नहीं थे, वो मॉन्स्टर्स नहीं थे, बस क्योंकि उनकी बीवियां मरी नहीं. पाकिस्तान में औरत को एक टाइनी मॉर्सल ऑफ सिंपैथी तब मिलती है जब वो मर जाती है. अगर वो जिंदा हो और वो बर्दाश्त लो तो वो हीरो है. वाह, मार खा वो खा के भी भी इसने इंडिया नहीं छोड़ा, वो वो हीरो है, भी वो बर्दाश्त है. लेकिन सजाद, अगर 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 पुअर इंसान क्लास की है तो इंसान उसको नहीं फिर है वो भी वो. नहीं मिलती. अगर वो पुअर क्लास से, उस क्लास से उसका ताल्लुक है ना, और या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक है, तो उसको वो वाली सिंपैथी भी नहीं मिलेगी. मैं ऐसी पर्सनली कितनी सारी औरतों को जानती हूँ जो कि दे वीडियो लगा के अपनी रो धो के अगले दिन दे डाइड एंड दे न्यू दैट दे आर नॉट गोइंग टू लिव. मुझे पता नहीं, मतलब हर दफा शर्म आती है और मेरा दिल करता है कि ये वाकया शेयर करूं, लेकिन और फिर मैं कहती हूँ कि पता नहीं शायद नहीं करना चाहिए. लेकिन मतलब देयर वाज अ नेबर ऑफ आवर्स हमारे पिंड में, और वहां पे एक बंदी थी और वो शी हैड अ लॉट ऑफ करेज एंड लाइफ.
in herself and she opened a small beauty parlor. और एक दफा मुझे याद याद है, एज अ 15 year old मैंने भी उससे अपने बाल जो है ना वो ब्लीच करवाने की कोशिश की, एंड इट केम आउट हॉरिबली। और उसको मेरी शक्ल देख के ही पता चल गया कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। मूविंग ऑन फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम सेवरल ईयर्स ऑन, मुझे हमें ये पता चला कि शी हैज, उसी मोहल्ले में शी हैज वेंट टू सेवरल पीपल रोते धोते, हर किसी को ये कहते हुए कि मेरे घर वाले जो है, मेरे जो भाई हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे ये लोग बिजली की तारें लगाते हैं, मुझे ये लोग सिगरेट लगाते हैं, मुझे पता नहीं ये लोग क्या क्या कुछ करते हैं, और ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसकी मेन रीजन क्या थी कि उस बेचारी ने जो पार्लर खोला हुआ था ना, उससे उसने थोड़े से पैसे जमा 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 कर लिए हुए थे, और उन उसके और वो थोड़ी सी फाइनेंशियल उसको उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई थी। तो उसके जो है ना वो भाइयों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, एंड दे इवेंचुअली फाइनली किल्ड हर। और जिस वक्त, और उसकी गाँव में उसकी लाश भी नहीं थी मिली, उसको दफनाया भी उन्होंने कहीं और जाके था। ठीक है। और कुछ जिन लोगों ने उसकी लाश देखी थी, उन लोगों ने देखा था कि इसके रिस्ट में से जो है ना, उन्होंने बकायदा तारे अंदर घुसोड़ी हुई है, रिस्ट इस तरह से उसको मारा है बिजली की तारों से। और यहाँ पे ना मैं पहले इग्नोर कर रही थी, गुड वाइफ्स के नाम से कोई हरामजादा है, कुत्ते का पुत्र, ये अभी फाइनली इसने कहा है कि सॉरी यार फॉर बीइंग अ ट्रोल, मैं बोर हो रहा था। आप जैसे मर्दों के ऊपर 100 बार लानत और शर्म, आप लोग शर्म से डूब मरे। आप अल्लाह करे आप कहीं बाहर निकले, आपको कुछ ठुड्डा पड़े, आप लोग वहीं पे जाके फड़क के मर जाएं। ठीक है। क्योंकि आप जैसे ही मर्दों का हम रोना रो रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना बहुत सारी औरतों को तकलीफ पहुंचाई होगी, और आगे भी पहुंचाई होगी, और अभी भी इस वक्त आप यही काम कर रहे हैं, बेहुदा बेशरम, बगैर कोई जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि मतलब मुझे लगता है तुम्हारा कोई खानदान भी जो है ना वो कोई आगे पीछे का नहीं है, या अगर है तो यू डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। ठीक है। जो भी हो तुम, तो मेरी तरफ से ये मिडिल फिंगर। जिले हुमायूं हेयर, हेलो जिले, जिले यू आर म्यूटेड। Yeah. Hi, how are Zille you? was in a meeting. Zille were discussing the recent cases of violence against women, since आप जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान में काम करती हैं, मे बी लीगल पर्सपेक्टिव आई डोंट नो, बट जनरल ओपिनियन आपका No, क्या है? I'm a statistician. I'm gonna give you statistical perspective and facts and figures, Yeah. but I keep telling you stop using the word recent. ये recent incidents नहीं है. Social media में recently highlight होने लग गए हैं. I've been reading even उर्दू के newspapers since the age of 8 or 9 years old, और तब से मैं रोज पढ़ी हूँ। मेरे लिए मैं जब छोटी थी इतना कॉमन इतना नॉर्मलाइज था कि, एंड विच इज वेरी सैड, कि कभी किसी को उसके ससुराल ने जला दिया, कभी तेजाब डाल दिया, कभी वो इतनी ज्यादा औरतों के केस डेथ्स की न्यूज होती थी। बस मैं वो सारा न्यूज पेपर पढ़ती रहती थी बिकॉज मुझे अपनी उर्दू इंप्रूव करनी थी। बट उसके साथ साथ जितना मुझे पता चल रहा था, जितनी ये चीजें मेरे लिए कॉमन हो रही थी, तो इट्स नॉट रिसेंट। ये सिर्फ सोशल मीडिया में या कोई रिच फैमिली का कोई इंसिडेंट आता है तो वो हाईलाइट हो जाता है, या कोई बहुत जैनब वाला इंसिडेंट, बट जैनब वाज नॉट द ओनली किड आइदर। सो तो इट्स नॉट रिसेंट, इट्स वेरी, ये बहुत पहले से है। अब हाँ, जस्टिफिकेशंस जो आ रही हैं इसको, जो सारे मर्द अब जस्टिफाई कर रहे हैं, दैट्स वेरी रिसेंट। वो उसमें तो बहुत क्रिएटिविटी आ गई, और बहुत वो जो होता है ना, टू सेव द पेट्रियार्की, टू सेव अ सिस्टम दैट्स बेनिफिटिंग देम, उसके लिए तो इतनी जस्टिफिकेशंस आ रही हैं। अब न्यू लॉजिक ये मार्केट में आजकल के, ग्राउंड चेक किया करें, बैकग्राउंड चेक करें, तो फिर इंसिडेंट ऐसे नहीं होंगे। जो ऐसे मर्द को डेट करने से पहले या शादी करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लें तो आपकी गलती है, तो विक्टिम डिस्कस्टिंग, दैट्स नाउ, हाँ दैट्स वेरी रिसेंट। बैकग्राउंड यही हम जिले थोड़ी देर पहले बैकग्राउंड चेकग्राउंड का कर रहे थे ना, तो मैंने पहले कह रही थी कि there is a भाई whole set of procedures and process that is well established and well communicated between these fucking incels. They know how they are going to approach a woman. They know what kind of persona they are going to put forth. They know what are the things that they are going to say. They also know the red flags that they are not supposed to say. The moment a woman is comfortable, दे अपना जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके खोल देते हैं। मैं ये बात कई दफा अपने पर्सनल बारे में रिपीट कर चुकी हूँ। मेरे से लोग पूछते हैं, जब आपको पता था कि इतना आपका जो एक्स है वो इतना, जब आपको ये चीजें नजर आ रही थी तो फिर भी आपने क्यों शादी की? तो मैं 10 दफा ये बोलती हूँ कि भाई एक तो मेरे ऊपर प्रेशर था शादी करने का, ठीक है। दूसरा दूसरा
उसने जो झूठ बोले हुए थे, या उसने जो अपने जो भी उसके जो भी ड्रामे ड्रूमे थे, वो लेयर्स के अंदर मेरे ऊपर खुले थे। आखिरी टाइम तक, 4 साल की शादी के आखिर तक मेरे ऊपर उसके झूठ जो है वो खुलते रहे थे। तो मैं अगर अपनी बट तरफ से ये बता रही हूँ तो But बाकी। Mariam, the fact that you had to give answers to these, you have had to justify कि इसमें मैंने तो ये काउंटर चेक किया था, मैंने तो तसल्ली की थी. That's very sad because why blame is on us even when we discuss about it, और किसी ऐसे ट्विटर स्पेस में ऐसी जगह पे जहाँ पे मर्द हजरात भी और ये बात हो रही है और हम इशू डिस्कस करें कि ये वायलेंस है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, तब भी दे ऑलवेज कम अप विद क्या सोल्यूशन है इसका. व्हाई सोल्यूशन का हाँ, बर्डन इज ऑन ऑप्रेस्ड वंस टू. क्यों ऑप्रेस्ड? हम लोग तो पोजीशन ऑफ पावर में भी नहीं है. दिस कहाँ है इज हमारा जेंडर डिसीजन मेकिंग पोजीशन में? व्हाई every blame and every responsibility is on us This is to my while next we are. this is my next favorite question. Other than what is your personal definition of feminism? नहीं नहीं, मुझे गूगल में पता है फेमिनिज्म, लेकिन what is your personal definition of feminism? And the next question is, अच्छा solution बताए ना, अच्छा solution हाँ, बताए ना. हम बताएं solution. We are the oppressed ones here ये and we are not even on position of power. We are not on any decision making position. You guys are in the system. You guys are getting benefited from the system. अभी भी जो ये logic आ रही है कि background check क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों करें? The thing is कि when every नहीं, man बट can अगर get away जिले with आप it. लोग वो भी कोशिश करें हैं, ये जो 4-5 ग्रुप्स बने थे, गुची और रिवैम जो भी, उस पे हाँ मर्दों का क्या हुआ? उस पे पूरे इंटरनेट पागल हो गया था कि अब औरतें प्रोफाइल्स लेके एक दूसरे से चेक करती हैं कि मैं जैसे शादी कर रही हूँ, ये मर्द हाँ ठीक है या नहीं. ये हाँ, yeah. एक्सपोज करें इन औरतों को. ये पाकिस्तान बर्बाद करने के लिए ये औरतें आई तो हैं. शहजाद अब कह रहे हैं जी आप उन्होंने बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं करते? कुत्ते के बच्चों, तो जब करने की कोशिश कर रहे थे तब तो तुम लोगों ने करने नहीं दिया. तो शहजाद उन्होंने उस पे हमें एक्सपोज किया था ना. सोल ब्रदर्स पाकिस्तान में मेरी पिक्चर आ गई थी और कि ऐसी इंसान से ना कोई शादी करे और इसके ये जो हाँ, जिन बच्चों को पैदा करेगी वो तो जहनुमी होंगे और वो पता नहीं क्या होंगे, ये तो लिबरल, ये तो एंटी स्टेट लोग हैं. नहीं, वो और तो जब किसी होंगे जिले, लेकिन इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं, ये तो दैट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. जब हम बैकग्राउंड चेक करने लगते हैं तो आप लोग हमें पोस्ट करते हो हर जगह पे और ये लिखते हो कि ये तो काफिर हैं, ये तो लिबरल, ये तो एंटी स्टेट हैं, तो ताकि या तो मुझे वीगो उठा ले या मुझे लास्टमी लॉ लग जाए. मतलब इट्स लाइफ थ्रेटनिंग. बैकग्राउंड चेक्स भी करो और पर्दा भी रखो. भाई पर्दा रखा हुआ है हर जगह, तो फिर बैकग्राउंड चेक्स कैसे होंगे? एंड अगेन ये सोल्यूशन वाली बात भी इज द मोस्ट बुलशिट थिंग. आई मीन व्हाट आर वी डिस्कसिंग? डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, रेप गलत है, तो सोल्यूशन हाँ, क्या है? तो ना करो ना. मतलब हाँ. इसका इसमें हम तुम्हें क्या क्रिएटिव सोल्यूशन दे उसका? इफ वी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, solution, don't do sexual assault. I mean, it's a genius solution, but the fact that you needed us to हाँ. spell that out shows कितने brain cells चल रहे हैं आप लोगों के दिमाग में. No, Yeah. they अच्छा have a solution. They do come up with always के जिसने कर दिया उसको डेथ पेनल्टी हो जाए और कैस्ट्रेशन. अभी भी ट्विटर पब्लिक दो में, दिन पहले. जिले, डोंट फॉरगेट पब्लिक के अंदर चौक में हाँ, लटका के कर. यस, बिकॉज दे वांट टू पोर्ट्रे कि जिसने किया यही एक मसला है, यही एक प्रॉब्लम था, दैट्स इट. हम सारे तो मतलब हम तो खुद ऑब्जर्वर्स हैं सिर्फ, हम तो इस सिस्टम से बेनिफिट भी नहीं कर रहे, हमें तो पता ही नहीं है कैसे रेप और कैसे मर्डर हो जाते हैं. द फैक्ट दैट दे वांट टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन वन केस जो हाईलाइट हो जाता है कि हाँ हाँ इसको खत्म कर दो, मसला हल हो जाएगा. मसला तो रेप और मर्डर है ही नहीं. आई कीप रिपीटिंग दिस, मसला तो रेप और मर्डर है ही नहीं. मसला तो पेट्रियार्की है जिसके रिजल्ट में कॉन्सिक्वेंस है रेप और मर्डर एट द एंड ऑफ द डे. उसकी कॉन्सिक्वेंस की एक स्वेयर फॉर्म है जो कि बहुत ही नॉर्मलाइज और कॉमन हो गई है. यहाँ पे भी कल परसों आई वाज ऑन इन दिस ट्विटर स्पेस वेयर आई वाज कोटिंग सम स्टैटिस्टिक्स और उसमें कि हमारा कन्विक्शन रेट इज 3%, ये हो गया वो हो गया. एंड देन किसी ने जल्दी से माइक अनम्यूट किया और काट दो इन सबका काट दो, तुम लोग तो यही चाहती हो. हम नहीं ये चाहते. हमें तुम लोगों का कटवा के कोई फायदा नहीं हो रहा. बिकॉज यहाँ पे तो रेप ऐसे भी हुए हैं कि वजाइना में दे पुट रॉड्स उसमें. तो या तुम लोग, इट्स नॉट बिकॉज यू गाइस हैव पीनियस तो उस वजह से ही तुम लोग तंग कर रहे हो, उस वजह से तुम लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे हो. दैट्स नॉट द पॉइंट. तो और किसी ने रिसेंटली बहुत बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट, बहुत जीनियस काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, वो ये कि फेमिनिस्ट तो अगर जंगलों में होती है, जानवरों में भी होते फेमिनिस्ट, तो वो तो ये इस तरह की बातें करते हैं कि हिरन वगैरह को जो हाँ. है बचाओ. और बट लाइक, तो आर रिस्पॉन्स वाज कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम लोग प्रेडेटर्स हो तो किसको केज करें फिर? मतलब प्रे को या प्रेडेटर्स को? केज ये भी तुम लोगों हमने ने हमको हिरन करना है. हिरन शेर हिरन वाली काफी बात हम ज्यादा कर चुके डिस्कस हैं. कर लिया है. हिरन I think शेर we're हम कर closing, चुके हैं. we're close to 2 hours at this point. So final, I know we want to discuss Iran as well, लेकिन अब सिर्फ 2 घंटे होने वाले हैं.
All No, we no, can probably do is support. this actually extends on to how these people think about women and how they think that women are such, जिसे कहते हैं ना कि वो disposable, हम बेसिकली थंगते हैं ना बगैर उसके चीचे उसके ऊपर कवर के, मरियम, तो हमारी एक वो एक्सपायरी इस डेट तरह होती इसमें है. इसमें नरेश गिरदार कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं, गुड टू सी दैट नन ऑफ द women participants is beating hijab और burqa. Indian Maulvis may fight for the right of hijab even if none of them want to wear it. नरेश, यही तो आर्ग्यूमेंट है. हर मर्द जो है ना औरत की बॉडी को अब पॉलिटिक्स बना लेता है. हिंदू फार राइट जो बोलता है ये औरतें हिजाब नहीं पहनेंगी, इंडियन मौलवी पाकिस्तानी मौलवी कहता है जी वो पहनेंगी. औरतों ने जो करना है उनको करने दो. अगर उन्होंने ईरान में नहीं पहनना किसी ने तो उसको ना पहनने दो. अगर फ्रांस में किसी ने पहनना है तो उसको पहनने दो. दिस आइडिया दैट वी एज मेन कैन कलेक्टिवली डिसाइड whether they should or should not, that is what matriarchy is. It's about choice. If someone wants If to I wear can it, let zoom them. out, If they don't. Ji. I can zoom this conversation out a bit regarding the hijab and burqa and whatnot. I just want to highlight how a single piece of cloth right now is being given more importance than women ever will. The lack of or the choice to wear that single strip of cloth, which is somehow a determinant when it comes to a woman's character, a woman's morality, a woman's position in that particular society, is more important right now than the choices of those women, than the beings of those women, than the lives of those women. Because yeah. इतनी सारी औरतें हैं. Again, like I think it's as simple as allowing that choice, right? Allowing me kya, having that choice rather. Even my language colored with the patriarchy. कि I'm like allow करो उनको. नहीं भाई, तुम कौन हो? Like allow कहाँ से करोगे तुम? Like it is as simple as a woman deciding to wear or not wear a piece of cloth, and that a certain color of a certain color, and that has become such a huge thing that women are being killed over it. And even then the conversation is not about the woman but the principle behind that piece of cloth, and it boggles my mind. It's so interesting how the conversation always, like when it has to be about the woman, it's anything but, and when it is about the woman, it's about how can we do our best to assassinate this person, to assassinate her character, and to make her the problem as opposed to the entire situation. Maryam Jamali, you have not said something for a while. Thoughts? So I'm just listening and sort of thinking about all of this. Maryam, do you know Sadia We Khatri by do any all chance? the You remind me a time. lot of Sadia Khatri. No, I don't, but You I've should. heard of the name. She's an amazing I'm person. pretty sure. Like I usually have this conversation with my friends, as all women do, and you will never find a single woman who will say कि मेरे साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ. So maybe men learn from that. अगर आपको जो है ना स्टेटिस्टिक्स से यकीन नहीं आ रहा, अगर आपको जो है ना पर्सनल अकाउंट से, हमारे पर्सनल अकाउंट से यकीन नहीं आ रहा, आप अपनी बहन से पूछ लो, किसी बहन बता देगी. आप अपनी माँ से पूछ लो, वो भी बता देंगे आपको. फिर अगर कोई जो है ना हिम्मत जागती है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं जागती तो फिर आपको हम लोग जानवर ही समझेंगे, और क्या करें. Yeah, I keep seeing all these posts. Imagine if you close your eyes and you imagine your daughter with a man just like you did. Hell no. Like they don't give a fuck. They don't give a fuck. लोग तो अपनी बच्चियों को मार देते हैं, बच्चियों को रेप कर रहे हैं, अपनी बहनों को गाड़ देते हैं जमीन में. Do you think they give a fuck about whether even that sort of relationship between them? बहुत कम लोग हैं who will probably be like, oh shit यार, ये तो बहुत ही critically मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. नहीं भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता. बेटी पैदा हुई है, बेटी इज ऑब्वियसली अ बर्डन, शादी करा दो, आगे जाके मर जाएगी, जो भी हो जाएगा, ब्लड मनी ले लेंगे, बस खत्म. मोर्न ज्यादा क्या, व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन? विल हैव टू मोर्न आवर डॉटर ना, ठीक है कर लेंगे, 6 और की भी शादियां करानी है. Like these infographics and all this, like oh, you have to think, like shut the fuck up. Okay, nobody is thinking, nobody is caring. You either decide today as a man, are you somebody who is capable of empathy for women, or are you not? Because if you're not,
then we know what category to place you in ना. Then we will also like, हम तो वैसे भी बहुत ही मतलब कुछ डील करने ना करने के लायक नहीं है, बट हमें पता तो होगा कि कौन से मर्द सेफ है, कौन से मर्द अनसेफ है, जो कि जनरली मुझे लगता है कि ज्यादातर अनसेफ होते हैं, बट we'll have a better understanding. Don't hide behind all these optics, and don't hide behind language and excuses and whatnot. Just say, like, just come out with it. We know that this society is not safe for us, so don't hide behind like all these fancy excuses कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए. Just come right out and say it. It's time. ठीक है, बहुत हो गया. अच्छा, किसी ने एक इधर चैट में कहा है कमेंट है, जी, यू गो अहेड। किसी ने चैट में कहा है Sajeer is a doppelganger of Indian comedian Shija Chaturvedi. Sajeer, do you know her? Sajeer, do you know her? No? I'm about to blow your mind. She's Sajeer Sheikh, Googling what are her. you doing on stage? Sajeer, how are you doing stand-up, Sajeer? वे हाँ, Sajeer, ये तो stand-up कब से शुरू कर दिया? Oh yeah. बताया भी नहीं Sajeer. इंडिया चली गई तो. I've many talents. I'm a woman of many talents. yeah. Yeah. But Oh, yeah, sorry. that reminded me कि जो है ना, वैशाल में इस मुल्क में जो है ना, if you are a woman and you have passed away, फिर अगर कोई जो है ना आपको रेप करे, अपनी डेड बॉडी को ग्रेव के अंदर रेप करे ना, फिर शायद शायद किसी मर्द को जो है ना थोड़ी सिंपैथी आती है, फिर वो बोलेगा कि नहीं ये गलत नहीं, था. तब भी नहीं आई थी. नो, तब तब भी भी नहीं नहीं आई आती. थी. ये जो ग्रेव्स वाले इंसिडेंट हुए थे तब भी नहीं आई थी. नो, वो भी हो गया हुआ है. तब अच्छा, भी किसी एक को कोई एक सिंपैथी नहीं. एस्पेक्ट किसी ने यहाँ पे कमेंट किया कि माय फ्रेंड्स अंकल वाज पॉइजन्ड बाय अ वुमन हु मैरिड हिम फॉर मनी एंड रैन अवे विद ज्यूस इन हिज रूम. शी कैपिटलाइजेस ऑन वुमेन एम्पैथी इन कोट्स एंड गॉड किस. अच्छा ठीक है, मैं सॉरी लाख रुपए की सॉरी. शर्त लगा रहा हूँ, ये झूठी शर्त है, झूठी कहानी है, बिकॉज ये उमर थ्रू आउट द चैट, ये उमर वही है. औरतें फ्लैश ऑफ डॉलर्स हैं, ये वो वाले उमर है अच्छा जिन्होंने ये अच्छा, ये स्टोरी डॉलर वाले, लिखी है, तो मोस्ट ये प्रॉब्ली डॉलर झूठ वाले. होगी. बट इवन इन द ऑफ हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी, ऑब्वियसली कुछ बीवियों ने मियाँ के मर्डर्स किए हैं, ऑफ कोर्स किए हैं. इसका मतलब ये ठीक क्या ही होता ठीक है है. कि अगर हम औरतों की राइट की बात कर रहे हैं तो we're saying every woman ever in history has not committed a crime. All we're saying is yes, of course, violence against men also happens, but very rarely does violence against men happen to them because they're men. Violence against men is often incidental to their gender identity as men, whereas violence against women specifically in most cases is because they are women, which is why we frame these conversations in the context of violence against women, and we do not frame this in the context of violence in general. Even when we talk about domestic violence, yes, there are cases of domestic violence against men. Obviously those are condemnable, obviously those are not acceptable, but it would be foolish to deny that the overwhelming majority of domestic violence is committed by men against women. And even in most cases, Pakistanios के तो mind blow हो जाएंगे कि दो मर्द भी साथ रह सकते हैं. In most cases abroad that you will see statistics, domestic violence on men is also committed by men. Shocking. Oh, And on हाँ. children, and Okay, on talk dead about like bodies, this and on animals, class, and on all the goats and sheep. Yeah. the class aspect of this कि मेरी उम्र अभी 19 साल है, but in the past like few years or so, there weren't any high profile cases that I had noticed. So a lot of people talks about rape and especially honor killings as this very far off thing. वो सरदार लोग करते हैं, वो बारबेरिक जो है ना लोअर क्लास लोग करते हैं जो गांव में रहते हैं. And those same people, like, this is what they do. They want a justification to hide from it. They want to feel alienated from it कि हम तो उन लोगों का हिस्सा नहीं है ना जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो उनकी जो है ना कोई मॉरल प्रिंसिपल्स इतनी नहीं होती कि वो किसी की राइट टू एग्जिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे. तो दैट, आई डोंट नो, इट मेक्स मी फील रियली वेट कि जो है ना उनकी रेसिज्म भी जो है ना अचानक से इसी चीज से जाग जाती है व्हेन देयर इज एन ऑनर किलिंग दैट हैपेंस locally here at least, because I only know of the Balochistan context personally, but yeah. Thank you everyone. Let's get closing statements. Mariam, chale.
क्लोजिंग स्टेटमेंट मेरी यही है कि इस दफा तो मैंने एक नई चीज नोटिस की है कि वी एक्चुअली सेलिब्रेट रेपिस्ट, murderers, alleged domestic abusers. We actually to really celebrate them because now we actually have a celebrity in face of two of them. But the recent one that we really love. Again मुझे उसका नाम भूल गया है. अच्छा ही है मुझे फिरोज उसका बार खान। बार नाम भूल रहा है. हाँ, फिरोज खान. उसकी तो मतलब भाईजान के डिफेंस में खवातीन भी आई और मर्द भी आए. और मतलब पंजाबी में से कहते हैं कि टिड नंगा नहीं करना. उसकी बीवी को मशवरे दे रहे हैं कि अपने मामला जो है वो घर के अंदर ही रखो. और फिर उसके बिहाफ पे फिरोज भाई करके ट्वीटिंग की जा रही है. ठीक है. यार मरियम, तो मैं इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं पेरिफेरीज पे हूँ। पीआर मैनेजर लिटरली और सेलिब्रिटीज को मैसेज करते हैं कि यार इसके फेवर में बोल दो, उसके फेवर में बोल दो। ग्रजिंगली काफी सेलिब्रिटीज दूसरे सेलिब्रिटीज को भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज अगेन आई एम नॉट सेइंग देयर वेरी गुड पीपल एंड दे आर डूइंग दिस बैड थिंग, नो, दे डू इट के अच्छा जी हमने 6 काम और करने, तो सेल्फिश रीजंस। बट जस्ट बिकॉज अ सेलिब्रिटी इज सपोर्टिंग अ सेलिब्रिटी डज नॉट एक्सोनरेट दैट सेलिब्रिटी। मोहसिन अब्बास हैदर की बीवी ने तस्वीरें पोस्ट की थी, and yet our industry stood by Mohsen Abbas either, he's still getting work। तो इंडस्ट्री वालों के मॉरल स्टैंडर्ड्स पे जजमेंट्स ना लें कि कौन सही है कौन गलत है। सॉरी मरियम, जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रही थी कि अभी मतलब जितनी हमने बातें करी थी हम कर ली थी. मैं भी यही कह रही थी कि नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू सेलिब्रेट सच मैन. पहले जो है वो हम सिर्फ नहीं ब्रो उसने तो उसका ये मतलब नहीं होगा, उसने इस तरह किया होगा, उसने इस तरह किया होगा, उसका एक्चुअली तो उसकी बीवी को प्रॉब्लम हुई होगी, समथिंग समथिंग ब्रो ब्रो करके. अब हम कहते हैं कि नहीं ब्रो, उसने जो किया है वो ठीक कर रहा है ब्रो. तो वी आर रिग्रेसिंग. और मैं तो बिल्कुल वो निहिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रही हूँ कि मतलब इंसानों की और खासतौर पे औरतों की तो वुक्कत जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है. और अब तो मुझे मंकी पॉक्स का ही आसरा है. ये मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने बोला नहीं बिकॉज आई वाजंट श्योर कि मैं इंटरजेक्ट करके बोल सकता हूँ, बट सिंस फातिमा ख्वाजा ने बोल दिया है, आई लव टू रीड इट। एंड शी इज लाइक, मरियम जमाली इज 19, kudos to her clarity and articulate thoughts, my goodness how talented are our women, I agree। है मरियम, यू आर 19? अल्लाह, फिर तो मैं चुप ही रहती सारा टाइम. मुझे तो खेत गालियां भी सही खे, तरह से देनी खे, है. खेतों में भाग रही थी 19 साल की उम्र में मरियम शफकत। अब ना मुझे से एक स्टोरी याद आ गई है. सुना दो, चलो तुम्हारी खेतों की किसी स्टोरी पे हम खत्म कर देते हैं पॉडकास्ट। ये स्टोरी मैंने नहीं सुनानी, ऑफलाइन सुना दो सुनाओ. मरियम। अरे यार, ये चल सजीर क्लोजिंग। फिर ये कहेगा क्या स्टोरी पॉटी से रिलेटेड होती हमारी हर स्टोरी होती है, इट्स ट्रू। कितनी है. मैं पॉटी हो एक ही सकती है? दफा क्रिटिकल टिंकर ने जितनी टट्टी कमेंट्स किए हैं चैट में, उससे बुरे तो नहीं हो सकते जी। ये भी वैसे है. बस एक बताएं दफा मुझे स्टोरी। खेत में भागने से याद आया कि एक दफा पेट आ गई खराब हो गया खेतों में। था. दादी अम्मा ने पराठे बना के दिए थे काफी अच्छे वाले. तो पेट खराब हुआ, फिर आई हैड टू रन बैक टू द वॉशरूम. एंड इट वाज अ 15 मिनट की वॉक फ्रॉम द डेरा टू द माई दादा अबूज हाउस. वी हैड आई हैड चलो, टू रन. इट वाज नॉट अ फर्टिलाइजर प्लेजेंट उस उस वॉक. दिन फर्टिलाइजर के पैसे और बच गए खेतों में। और नहीं नहीं, इवेंचुअली मेरा ख्याल है कोई 95% बाथरूम में ही जाके की थी. I love the statistics, the accuracy. और जो 5% जो रह गई थी 95%। ना, वो भी मुझे वो उसके भी आई हैव एक्सप्लेनेशन. वो ऐसे था कि जब भी हम गाँव में रास्ते में जा रहे होते थे तो वो जितनी भी औरतें होती थी वो हमें रोक लेती थी. वो कहती थी हाँ आके इतने बड़े खोते हो गए ने, खोते ने बड़े बड़े खोते. तो उसने रोक लिया था बंदी ने उसकी बात. आई डोंट थिंक I was like, एनीबॉडी yeah, कैन I was like, yeah, yeah. टॉप दिस I was like, yeah, yeah, स्टैटिस्टिकल। I'm a khota, but I need to go to the washroom ASAP. Okay. 5% उन्होंने ले लिया, 96% चले अपनी सही मंजिल गया।
I don't think we'll talk With that, this but in case somebody wants to say something, sure, floor is all yours. refreshing, please match it with my potty story. No, I don't think any of us match that. I think that's great. Thank you, Why do I have everybody. so much potty news stories? हम ऑफलाइन चलते हैं, फिर हम मरियम शफकत की थेरेपी सेशन शुरू करते हैं. बट आई एग्री कि आपकी बड़ी फैसिनेशन है. थैंक I यू have एवरीबॉडी one thing to लिसनिंग. say. जी I have one thing to say. People who come up with a neutral जल्दी theory. बोलो, मैं भी इंश्योर करना चाहता हूँ कि 95 कम से कम सही जगह हो. इतनी देर में मेरा सेंटेंस पूरा हो जाना था. People who come up with the neutral stance और बहुत educated act करते हुए जो आप Yeah. neutral तो stance जानवर लेते होता हैं, है. ये जो न्यूट्रल स्टैंस वाली आवाम आती है ना बीच में उठकर कि अपेरेंटली वो पीपल अच्छा नहीं, वी नीड टू एनालाइज दिस सिचुएशन, वी नीड टू सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एंड ब्ला ब्ला. Bro, when you become neutral in a situation of oppression, you are on oppressor's side. That's it. तो stop doing that. Stop asking कि अच्छा थप्पड़ मारा था तो क्यों मारा था. जब आप कह देते हैं क्यों मारा था, इसका मतलब है कि कोई justification है उसकी, उस behavior की. So please, Yeah, grow up. absolutely. Can I also say two things before leaving? One, please follow Maryam Jamali and please help her with all her on-ground activity because that's absolutely like importance. B, recently I got a question कि किसी ने मुझे पूछा था कि आप हर चीज में टांग क्यों अड़ाती है, and I just want to know कि आप लोग क्यों नहीं अड़ाते. Like how do you, if the bare Exactly. is speaking, if the bare minimum is speaking about these things, why aren't you even doing that? Why are you questioning me? Why don't you question yourselves? Do the bare minimum. ना bare minimum ही कर लो, काफी है. That's all I want to say. Thank you. मैंने बस ये कहना कि मरियम, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू, और आपकी शक्ल दिखा के आई एम गोइंग टू मॉक माय यंगर सिबलिंग्स एंड आस्क देम के यू नो व्हाट द फक डूड गर्ल ब्रो, लुक एट दिस Yeah. किड एंड लुक एट यू. हमारे खुद पे शाहीन शर्म शाह आती अफरीदी है. एक्टिविस्ट और सर्कल. मरियम, बड़े होके हमें भूल ना जाना. You are going to go places. No, really. This is a serious one. You are going to go places. Yeah. I'm blushing now. I'm actually blushing now. Thank you so much You for being. you should blush. Oh no, thank you for everything that you do, and I know that you've been a little discouraged and felt a little sad about just the online reaction. I hope today makes you realize that even if you seem like you're all alone in the fields, you have all of our love, you have all of our support, you have all of our appreciation. So that truly, Mariam, for all the work that you do, thank you so much. Thank you. I'm so glad to hear that. I also have something to say to people. Stop spending so much time on the internet and donate to flood relief. Yes. Absolutely. Stop giving Donate. unsolicited opinions. Yes. If you feel like Yeah. saying something about women's rights and you're a man, just shut up and donate. 5,000 के नोट पे लिख कर दें जो राय देनी है ना. 5,000 के नोट के साथ अपने कमेंट्स डोनेट करें, हम पढ़ेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे. Maybe we should do a fundraiser where we only respond to questions जो पैसों के साथ है और वो पैसा डायरेक्ट फ्लड रिलीफ में जाएंगे सारे. Thank you everybody for listening and thank you for joining. Good night. Bye bye.